All right. So here we are, ready for the closure understanding of today's session. ठीक है, बात करते हैं सीए प्रतीक चांडक जी की बात करें तो आपसे फ्यूचर स्कोप है. सो लेट्स बिगिन विद कि आपके हिसाब से सीए एज अ ब्राइट करियर कैसे है विद फ्यू लाइंस ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग. सीए प्रतीक. यस जी. It's pretty simple. The course that we have, 8 subjects at intermediate level, at basic level we are taught, and then in advanced level, the final level. So we get a wide variety of spectrum of understanding of different subjects in detail, ranging from accounting, auditing, taxation in itself, जिसके अंदर various fields निकलती है. So be it direct tax, indirect tax, auditing, financial consultancy, and whatnot. So since it is an ocean of knowledge, okay, we get to know about so many subjects. So we are such a professional that we could be fit into various different slots that are available in the organizations, right? And not just that, it exposes us to so many businesses while we are into our articleship, right? That we get a lot of exposure of what kind of businesses are done, how can it be done, be it manufacturing, trading, or services. We get a competitive edge as compared to other people in our entrepreneurship. Maximum of our students from Surat are from good families, and they would like to go and succeed their family businesses. And they would get a cutting edge over all other peers because they have this knowledge of articleship and exposure to various businesses. Okay, so that is why this professional course linked with articleship training, and when done in proper manner, gives us immense edge, not just a corporate job or practice or even entrepreneurship. All right. So students and viewers, make sure that सिर्फ corporate jobs नहीं, but yes, entrepreneurship has still a wide scope for you to proceed ahead. Yes, CA केवल शाह जी, as प्रतीक जी ने बताया कि CA का बहुत ही bright future है, provided it has to be done in combination with proper practical exposure of articleship as well. I would also like you to throw light upon what about the courses like CS, CMA. इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है. सीए आई गेस ऑल ऑफ अस आर वेरी मच इनटू इट. आज एक 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछे कि आगे चल के क्या करना है, तो अगर वो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है तो ऑफ कोर्स ही हैज दिस सीए. बट आई वुड लाइक टू नो अबाउट सीएस एंड सीएमए एज वेल. That's a good question, Harsha, because after 12th, whenever students think for the professional course, ये 3 ऑप्शन उसके पास हमेशा होते हैं, एंड बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि कौन से कोर्स के अंदर आगे बढ़े. सो बिफोर आई गिव यू द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू थैंक सीए बालकृष्ण अग्रवाल to organize this whole meetup and for inviting me as a speaker. Thank you very much, Balkishan Bhaiya. And to Harsha, as usual, it is always a great time to talk with you. So thank you very much for being the moderator. Now, coming to your question, how much importance is there for the CS and CMA along with the chartered accountancy, right? See, I'm not going to disrespect any of the line. I'm giving you disclaimer. Okay? All these fields is having their own importance, because when we are talking about the chartered accountancy, this whole course has been built up in such a way कि बच्चों को उसके अंदर अपने हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो सीए इज ऑलवेज एन ऑलराउंडर कोर्स, क्योंकि उसके अंदर आप कंपनी सेक्रेटरी के रिलेटेड जो कंपनीज लॉ जो उनको पढ़ना होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं, रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रिगार्डिंग ऑडिट, सब इंफॉर्मेशन देते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीएस एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीएमए, these two courses are much more specialized into their own field. So for example, if I talk about the company secretary, तो नाम के अंदर ही रखा हुआ है कि भाई it is all about company, and it is all about the company's law and rules and regulations which every company has to follow. So when we are talking about CS, then CS is specialized course which is focusing only on the company laws and all things which are related to the company. मतलब companies को बीच में रख के उन्होंने अपना कोर्स पूरा तैयार किया है. And when we are talking about the CMA, that is all about the cost accountant, that is all about the cost and works management. ठीक है? So ये कोर्स भी बहुत स्पेसिफिक कोर्स है which only talks about the costing. So when we are talking about all these 3 courses, I am not giving any students here कि भाई आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए. It is totally up to the student's choice. But when it comes up to me,
जब मुझे ये डिसीजन लेना था कि whether I should go with the CA or I should go with the CS or I should go with the CMA, why I preferred CA? Because of this all-round coverage of the syllabus. All right. Students who are more inclined towards the laws and who are more inclined towards the working on these rules and regulations areas, they can go with the CS also. It is also not a bad field. And regarding the cost accountant, that is specifically regarding the costing part. So CA is an all-rounder, CS is specific to the company law, and CMA is specifically to the costing part. That's it. Thank you so much. Pratik ji, as Keval ji has mentioned about कि CA हमारा all-rounder course है और CS और CMA हमारा specialized course है. CS is for the law-based and CMA is for the costing-based. तो अगर कोई बच्चा सिर्फ CS करता है, जैसे अभी तो बहुत सारे बच्चे CA के साथ कॉम्बिनेशन में CS करते हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशन में CMA कर लेता है, बट इफ एनी इंडिविजुअल प्रेफर्स टू गो फॉरवर्ड विद ओनली CS और ओनली CMA, आपको क्या लगता है, आपका क्या सजेशन है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ दैट चाइल्ड एज देयर करियर? Right. Very nice question, and I forgot completely. Thank you all of you, especially बालकिशन भैया के बारे में 2 लाइन जरूर कहनी चाहिए कि हर किसी की लाइफ में नई नसीब होते हैं बालकिशन भैया, बिकॉज अगर हम मेहनत करने में विश्वास रखते हैं तो शायद हम थोड़े हनुमान जी जैसे, एंड हनुमान जी को भी एक चाहिए जो उनको गाइड करे, तो गाइडेंस और डायरेक्टर हमारे बालकिशन भैया हैं जो राम स्वरूप हम सबको गाइड करते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को किधर चैनलाइज करना है. So very grateful always to Balkishan Bhaiya and wonderful moderator. Thank you very much, Harsha. Okay, coming back to the question, company secretary, थोड़ा अगर there are 12th standard के students who are just given the exam of 12th standard who are deciding to think upon, तो ये आंसर उनके लिए बहुत relevant होगा कि think about the role of building वाले वो अंकल जो हर बिल्डिंग की मीटिंग में बोलते हैं मेंटेनेंस बढ़ाना है, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, वो मैसेजेस फ्रेम करते हैं कि आपकी मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हिसाब मेंटेन करते हैं, एंड बहुत सारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वो करते हैं. सो कंपनी बिल्डिंग के क्या होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं. प्रेसिडेंट सर अलग है, सेक्रेटरी अलग है. नाउ प्रेसिडेंट सर का काम लीडरशिप देना है, लेकिन सेक्रेटरी सर का काम होता है सारे लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर करना है कंपनी बिल्डिंग में हुए कि नहीं हुए. तो एक बहुत मिनी वर्जन है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं इनटू लॉन्ग टर्म. एक कंपनी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, लीगल कंप्लायंस सारे फॉलो करने जरूरी है, वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो हम कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम ऑब्जर्व करेंगे एंड इंश्योर करेंगे एंड इन डिटेल पढ़ने वाले. सो दैट इज वन एरिया. ना आपका जो क्वेश्चन था कि अगर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करेंगे तो कैसा रहेगा, तो इट इज सिमिलर टू अ सिचुएशन कि अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता, सिर्फ हार्ड हिटिंग बैट्समैन होता, तो क्या विराट कोहली उसको टीम में लेता? सिंपल जन जैसे बोला अंडर ऑलराउंडर, उसको मैं एग्जाम्पल के टर्म से पुट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा. Right, so it gives you an edge over the others, and in today's world where job is getting a bit difficult because सब लोग थोड़े exposed towards studies, towards areas of education. The coming generation always have to face more of tough, stiffer competition in compared to others. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दादाजी के टाइम पे थोड़ा ठीक था, हालांकि नॉट ठीक है, पापा ने थोड़ा टफ टाइम देखा, हमने टफ टाइम देखा, और मेरे आने वाले बाद की जनरेशन हमेशा एक टफर टाइम देख रही है, बिकॉज नॉलेज जो है वो ज्यादा फैल रही है, सब तक पहुंच रही है, थैंक्स टू गूगल एंड जियो दादा, राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा एज लें, बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, एज ए Keval bhai clearly mentioned that we should not cannot take away respect from any particular course. I sincerely believe that having an exposure to both the subjects would be very nice, both the courses, because more or less एक अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो अगर CA 100% है तो कंपनी सेक्रेटरी का अगर वेन डायग्राम बनेगा तो 75% तो ऑलरेडी CA में कवर करता है एंड सिर्फ 25% एक्स्ट्रा बचेगा, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम CA में का वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो 35% एक्स्ट्रा बचेगा, 65% CA में कवर करेगा. So if you are trying to opt for company secretary, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें. Obviously company secretary थोड़ा उन स्टूडेंट्स को सूट करेगा जो लोग लर्निंग को अपना फोटे मानते हैं, जो लोग डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको काम भी उनका फ्यूचर में ऐसे दे हैव टू रिमेन ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो जिनका लर्निंग फोटे, जिनको कैलकुलेशन थोड़ा फियर होता है, थोड़ा हम ये भी सोचते हैं कि हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सबको देना चाहूंगा. मेनी टाइम्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. जीवन में हम जो ठान ले हम डेफिनेटली कर सकते हैं. व्हाटएवर वी हैव थॉट ऑफ हम आराम से अचीव कर सकते हैं.
ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज करने में मजा आए, राइट, क्या हम बनेंगे। सो थोड़ा सा कंपनी सेक्रेटरी का जो रियल प्रैक्टिस करते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी की जॉब कर रहे हैं कंपनीज के अंदर, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हम लोग से बात कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू गाइड, वी कैन गिव यू कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरेंसेस, और आप बात कीजिए। और वो लोग जो काम करते हैं, वो काम करने में आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, एंड आप उसमें वैल्यू ऐड कर पाओगे। इफ यू थिंक लाइक दैट तो इट विल बी वेरी इजी। सर ने पुट अप कर ही दिया है कि वो थियरी और सेकेंडरी प्रैक्टिस का कोर्स है। यहाँ पे हमारे फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री की कॉस्टिंग को एनालाइज करना, राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर अपने आंसर को, बट ओरियो बिस्किट हम सब का, राइट। ओरियो बिस्किट का जो पैकेट है 10 रुपीज का भी आता है और 30 रुपीज का। 30 रुपीज की पैकेट है 120 ग्राम, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए अगर नहीं किया है, 30 रुपीज का पैकेट है 120 ग्राम एंड 10 रुपीज का जो पैकेट है वो 50 ग्राम। अब मुझे बताओ आप क्या ऑप्ट करोगे, राइट। क्या आपका दिमाग इतना चलता है, क्या आप ऐसे बंदे हो, आपको क्या ये एग्जाम्पल एक्साइटिंग लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। आप तुरंत पता कीजिए, राइट, कि एक 10 रुपीज का ओरियो पैकेट 50 ग्राम का है, मतलब अगर आप 3 पैकेट्स बाई करते हो तो कॉस्ट आउट प्लीज 30 rupees and your output is, the return you get is 150 grams. So that is whooping 25% more than what you are otherwise getting by paying 30 rupees outright. And also 3 different packing, तो सेलन विलन भी नहीं होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, आराम से एक आदमी कंज्यूम भी कर सकता है। So many various advantages. So think about it. ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है हमारे रियल वर्ल्ड में, and do you ever notice it? और अगर हम नोटिस करते हैं, कहीं पे भी चले जाओ तो छोटी छोटी चीज होती है कि घर में फर्नीचर चल रहा है तो कॉस्टिंग कैसे बिठाई आपने, प्लाई वगैरह की, आपने किस तरह से एनालाइज किया चीजों को। कोई प्रोजेक्ट फनफेयर चलता है तो आप कॉस्टिंग करते हो, आप हमेशा ट्यूशन जाते हो तो अपने सर की आप इनकम निकाल लेते हो, सर की इनकम एक्सेट्रा। अगर आप ऐसे कॉस्टिंग वाले बंदे हो तो यस, कॉस्ट अकाउंटेंट इज एन एरिया, बट हैविंग सेड दैट सारी चीजें सीए में आती है। सो करियर ऑप्शन में इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद सीए एंड साइड बाय साइड दोनों चीजें किए जाए। बट अगर कोई इंडिविजुअली भी करता है तो डेफिनेटली आप उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करें, एक्सीलेंट करें, और आपको बीट करना होगा, बिकॉज़ अ स्पेशलिस्ट विल ऑलवेज बी एबल टू बीट अ जनरल पर्सन। सो क्यों ना आप उसमें स्पेशलाइज करें, एंड डेफिनेटली आप उसको बीट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज नो लीगल कंप्लायंसेस है, वी नो दैट एवरी कंपनी नीड टू हैव वन कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमएस भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को वही लोग साइन करते हैं। सो देयर आर स्पेसिफिक फील्ड्स जो हम नहीं कर सकते, ऑल्दो वी कैन डू द वर्क, बट देयर आर सर्टेन एरियाज द गवर्नमेंट इनको बनाए हुए। सो आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बॉटम लाइन में अगर समझ करूँ तो अपने काम को एंजॉय करना। If you're going to enjoy it, then definitely we should opt. Yes, sir. Thank you so much, Pratik ji. I mean, जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने दिया ओरियो बिस्किट का, तो समझ गई कि भाई ये 25% गिनती एक सीए ही कर सकता है। थैंक यू फॉर योर एग्जाम्पल्स। बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू द फर्दर foreign professional courses, before that I would like to ask CA Keval Shah ji as to what do you think, ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th क्लियर किया है और मुझे अगर करना है से सीए में जाना है, तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए, सीए, सीएस, सीएमए। तो इंडिया में इसी तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज ये 3 के अलावा भी कोई है? कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये 3 कोर्स हमेशा प्रायोरिटी पे होते हैं, ठीक है। कोर्सेज की बात करें तो वैसे तो सिर्फ बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, और आजकल यूनिवर्सिटीज से लेके बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इतनी सारी है ना, जो बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। द ओनली थिंग व्हाट मैटर्स इज कि ये कोर्सेज करने के बाद वेयर डू वी स्टैंड्स। कोर्सेज करने के लिए तो आप कर लो, बहुत सारे कोर्सेज इग्नू भी करवाती है। आप एक एग्जाम तो 4 डिग्री इग्नू वाला आपको दे देगा, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम्स देनी है, तैयारी करनी है, और वहां पे जाके पेपर लिख के आपको डिग्री मिल जाएगी। बट द थिंग इज द टाइम हैज चेंज्ड। Let me tell you very honestly, till 2005 till 2006 इंडिया का एक दौर था जब हम लोग डिग्री से काम चलता था, ठीक है। ये एक दौर में सब चलता है, जो अपनी समझ जो होता है ना, वो दौर में चलता है। 2000, 2005, 2006 तक है ना, डिग्री से काम चलता था। जब हर्षद आप सीए कर रहे थे या जब मैं सीए करता था, तो कई बार ये लोग हमको कहते भी थे, अपने रिलेटिव्स होते थे, सोसाइटी के अंदर, आजू बाजू के अंदर कहते भी थे, सीए मतलब नॉट छापा मशीन। सो देयर वाज एन इंप्रेशन कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर लो, मतलब खेल खत्म, आपकी लाइफ सेट हो गई है। आफ्टर 2010 टाइम हैज लिटरली चेंज्ड। आफ्टर 2010 हुआ क्या है कि इंटरनेट का जमाना आया, फेसबुक का जमाना आया, ऑरकुट का जमाना आया है, और उसके बाद है ना, इन्फॉर्मेशन इतनी स्पीड में स्प्रेड होती है ना कि पीपल आर वेरी नॉलेजेबल। अब वो जमाना का है कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। लोग भी बहुत होशियार है, आपकी दुकान पे आते हैं ना, तो पहले गूगल पे जाके सब चेक करने के बाद आते हैं। टाइम इतना चेंज हो गया है कि पहले ऐसा होता था कि अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूँ तो लोग मेरे पास सीधे आते थे, कस्टमर भाई ये खरीदना है। अब सीधे नहीं आते, अब पहले सोशल मीडिया पे जाते फिर अपने पास आते। इतना टाइम चेंज हो गया है।
सो 2010 के बाद जमाना चेंज हुआ, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री अब आ चुकी है। 2014-2015 के बाद ये जमाना और चेंज हो गया है। अब तो सिर्फ 5 ही साल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 2010 से पहले का पूरा लाइफ अलग के लो, 2010 से 2015 और 2015 के बाद लाइफ और चेंज हो गई है। जो प्रतीक भाई ने बोला, मोटा भाई इंडिया को है ना पूरा का पूरा बदलने की फिराक में है। आप देखो कल की उनकी एजीएम, तो आपको पता चलेगा कि और कितनी चीजें वो नहीं लेके आ रहे हैं। और मोटा भाई ने जियो लेके आए, और जियो के बाद जो उन्होंने मुफ्त में सबको दिया है ना, उसके बाद तो जमाना भयंकर चेंज हो गया है। सो द बॉटम लाइन इज, कोर्सेज बहुत सारे हैं, 3 जो कोर्सेज की अपने बात की है, उसके अलावा देयर आर प्राइवेट कोर्सेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। बट द थिंग इज, वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर डूइंग दिस कोर्सेज? कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुल रही है, एंड अभी भी क्या हमारा दिमाग डिग्री बेस्ड है कि हमारा दिमाग स्किल बेस्ड हुआ है? अगर आपका दिमाग अभी भी डिग्री बेस्ड है, तो आप कितनी भी डिग्री ले लो, कितने भी कोर्स ले लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। अगर आपका दिमाग स्किल बेस्ड है, तो शायद तक एक कोर्स भी आपकी लाइफ निकाल लेगा। दैट्स इट। Perfect. So all the viewers and students, I hope you are very clear कि इंडिया में ये 3 prominent professional courses है, and of course there are many number of courses you can opt for in terms of जितने भी आप डिग्रीज लेना चाहें लेते जाएं, लेकिन see to it कि आपका स्किल डेवलपमेंट जरूर हो। Thank you so much, Keval ji. I'll proceed ahead with the next topic of CPA. यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने सूरत से इंडिया से CA किया, बीइंग एन इंडियन CA, शी शिफ्टेड टू कनाडा। वहाँ जाके टू हैव द फर्दर जॉब, मतलब वहाँ पे अच्छे से करियर सेट करने के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर हर कि वो CPA करे। सो प्रतीक जी, कैन यू प्लीज हाईलाइट अबाउट द CPA कोर्स? Ma'am, certified public accountant, and it is differently. I think आपके फ्रेंड्स शायद US गए होंगे probably. बाकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बहुत सारी कंट्रीज में उसको सेम CPA नाम से कहा जाता है, बिकॉज इट इज जैसे हमारी गवर्नमेंट के अंदर है, राइट? ICAI इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेपरेट एक्ट है, बट वो पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न की जाती है, राइट? तो सिमिलरली CPA US, CPA कनाडा, CPA ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट, और उसको कहीं की जगह पे कुछ और नाम भी दिया जाता है। बेसिकली वो जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप जाना चाहते हो या गए हो, राइट, एंड आप वहीं पे अपनी फ्यूचर करियर, फ्यूचर लाइफ देखते हो इनटू द सेम सब्जेक्ट्स दैट इज CA डज। सो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, या ऑडिटिंग हो गया, राइट, कंप्लायंसेस हो गए, कंप्लायंस इंश्योर करने वाली बातें होंगी। सो इन दैट केस CPA आपकी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मस्ट हो जाता है। सो इफ यू हैव अ प्लान ऑलरेडी और यू एंड अप गोइंग देयर, देन उस पर्टिकुलर कंट्री का CPA करना बेनिफिशियल रहेगा, और वो इनफैक्ट बेनिफिशियल मेरे ख्याल से कंपल्सन हो जाएगा कि आप वो करें। अब बहुत सारे सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम US को मानते हैं, एंड उसकी CPA उसकी एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी है काफी जगहों पे। सो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और कंट्री में जाओगे तो नहीं होगा, उनके इंटरनल टाइप्स भी होते हैं, ठीक है? तो यू विल हैव टू सी व्हिच कंट्री यू वांट टू नो, एंड दैट कंट्री हैव रिकग्निशन एंड टाइप्स विद व्हिच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। But CPA US is the most popular one, and it is not just applicable for US, but it is also applicable for many European countries too. ओके, तो मतलब इट इज अ टाई अप होता है। आप सिर्फ फीस पे करोगे, दूसरी सपोज आप जर्मनी में गए और आप वहाँ पे सिर्फ सिंपल फीस पे करोगे, आपको जर्मनी का CA भी अलॉट होता है, जस्ट बिकॉज इफ यू हैव कंप्लीटेड CPA फ्रॉम US। सो CPA US इज वेरी मच अ CA ऑफ इंडिया। वहाँ की लोकल बाउंड्रीज, लोकल कस्टम्स और रूल्स को जहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, और वो एडिशनल चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, एंड वो फटाफट आप क्लियर करके you can be working at the US also, and also to other countries. So that is about CPA. And I would also like to add a few things, a very bad habit, to add and supplement to what Keval ji said in the last question. Lawyer is a big profession, you all know. Okay, but उसमें ऐसा था कि बहुत सारे lawyers हैं. The number of lawyers produced every year, the number of engineers produced every year is, लोगों को पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग इतनी अच्छी, बट 12 लाख इंजीनियर डेली हर साल मिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से CA तो हमारे अभी तक 6 लाख के बारिश में ज्यादा बराबर आएंगे कि कितने, जब 3 लाख ही CA है। सो अगर हम देखें पूरी 65 इयर्स की जर्नी, 1949 से लेके अभी तक अराउंड 61 इयर्स की जर्नी में हमने 3 लाख CA बनाए हैं, और इंजीनियर्स एवरी ईयर 12 लाख बनते हैं, और सेम इज द केस विद लॉयर्स। बट अगर आपको पसंद है वो फील्ड, वो काम आपको करना पसंद है, तो डेफिनेटली आप एक्सेल कर सकते हो, बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज रूम, एंड नॉट जस्ट रूम, आई वुड से देयर आर रूम्स एट द टॉप, एंड एट द टॉप रूम नहीं होता, रूम्स होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू गुड। एंड एक एक्चुअरियल साइंस भी है जो थोड़ा टफ कोर्स पड़ता है, इट इज मोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एडवांस मैथमेटिक्स, राइट, एंड ये चीजें आपको इंश्योरेंस और बहुत सारी कंपनी जहाँ पे प्रेडिक्शंस इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे आपको जॉब्स मिलती है, लाइक पेंशन स्कीम कैसे फिट करेंगे, या कैसे हम प्रोविजंस करेंगे फॉर डिफिकल्ट थिंग्स के, एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रोविजंस करेगी, कितने क्लेम्स उसके आने वाले ईयर्स में आ सकते हैं।
So these are the things which actual science play a big role. So I'm trying to highlight what a person do after doing this professional course. And ये 2 professional course मेरे दिमाग में आए and I thought कि थोड़ा add करते हैं इसको. Yes. And that was about CPA. Thank you. Thank you so much Pratik ji. Next I would like to ask related to मतलब एक तो ये बताया ही है actual science इस तरीके से CPA को अगर आगे बढ़ाते हुए बात करें तो अगर इंडिया का कोई एक CA है और अगर वो दूसरी कंट्री में जाता है एंड बिकॉज ऑफ लॉ वहाँ के लॉ के हिसाब से वहाँ के सिस्टम के हिसाब से उसको कंपलसरी अगर CPA करना पड़ता है सो माय क्वेश्चन इज कि क्या उसको कोई एग्जेम्पशन मिलता है कि उसको सीधा बेस से वापस करना पड़ता है? इट्स बिकॉज वो यहाँ पे तो CA बन के गया है सो अगर अब वो दूसरी कंट्री में जाता है तो आर देयर एनी एग्जेम्पशन टू दैट इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन CA? यस केवल जी. I thought you were asking to the Pratik bhai. Acha. Okay. Yeah. So your question was on the exemption for doing CPA, right? Okay. See मेरे हिसाब से ICAI ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ तो टाई अप करके रखा हुआ है. अब जिसकी कंट्रीज के साथ अपना इंस्टीट्यूट का एक टाई अप है, ठीक है, वहाँ पे हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल CPA कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो CPA कनाडा का वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली सी रिसेंटली वेंट टू कनाडा 6 months बैक एंड आई जस्ट हैड अ लास्ट मंथ ओनली आई डिड टॉक विद हर. सो शी इज गिविंग CPA कनाडा एग्जाम्स. सो कौन से उसको एग्जाम्स मिल रहे हैं तो CPA कनाडा के लेवल 1 लेवल 2 वहाँ पे भी आते हैं तो वो दोनों लेवल अपने लिए एग्जाम्प्ट है. Now we need to appear only for the level 3 only and level 3 के अंदर भी we need to appear only for the few subjects. जैसे for example when doing chartered accountancy we are learning the taxation of India. It's so simple. We are doing CA from India, right? So we have learned the taxation, we have learned the GST, everything all about the India. Now when you are moving to Canada and you are going to stay there for the forever, then you need to learn the taxation part and you need to learn the laws and regulations of their own country. And that is where they don't give you exemptions into these papers. Otherwise when it comes to accountancy, when it comes to finance, when it comes to costing, you get complete exemptions. So CPA Canada की अगर मैं specifically बात करूँ because India के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज है Canada जाने का. तो कनाडा की अगर बात करो तो CPA के अंदर अपने को सिर्फ लेवल 3 देना है और लेवल 3 के अंदर भी अपने को कुछ क्वेश्चंस ही कुछ पेपर्स ही अपने को वहाँ पे देने होते हैं. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज एग्जाम के पैटर्न जो है ना वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड एज कम्पेयर टू इन कनाडा. तो उनका जो पेपर होता है वो इट्स कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड पेपर होते हैं. एक ही केस स्टडी आपको दिया होता है और 4 घंटे तक आपको एक ही केस स्टडी सॉल्व करना होता है. नाउ जस्ट इमेजिन देयर इज ओनली वन केस स्टडी एंड यू हैव टू सॉल्व दैट केस स्टडी फॉर द 4 hours. तो उस केस स्टडी के अंदर क्या क्या दिया होगा और आपको क्या क्या उन्होंने पूछा होगा. सो बेसिकली उनके जो पूरी एग्जाम्स होती है दैट इज कंप्लीटली केस स्टडी एग्जाम्स. That was all about CPA Canada. Other than this, ICAI का जो अपना टाई अप है along with the Singapore इंस्टीट्यूट का अपना एक चैप्टर है दुबई में अगर आपको जाना है तो कोई CPA वगैरह की आपको जरूरत है नहीं सर बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी वहाँ पे पूरा अपना चलता है. अलॉन्ग विद दैट ICAI का जो अपना टाई अप है वो टाई अप है विद सिंगापुर या मॉरिशस में से एक कंट्री के साथ अपना टाई अप है. ठीक है, मोस्टली सिंगापुर के साथ टाई अप है. सिंगापुर के अंदर भी ICAI का चैप्टर है, ICAI चैप्टर सिंगापुर. तो वहाँ पे वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. CPA मेरे हिसाब से वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है. व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे भी अपना टाई अप है बट वी नीड टू गिव फ्यू पेपर्स व्हेन यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. US के अंदर अगर अपने जाते हैं तो मोस्टली US के साथ अपना टाई अप नहीं है तो वहाँ पे फिर आपको मे बी यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच लेवल. सो जहाँ पे इन शॉर्ट ICAI का टाई अप है वहाँ पे अपने को पेपर्स बहुत सारे एग्जाम्प्ट है. सिर्फ वहाँ पे जाके अपने को वहाँ का टैक्सेशन वगैरह लर्न करना होता है. जहाँ पे टाई अप नहीं होता है वहाँ पे आपको यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. करेक्ट. सो बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चली कि एक केस स्टडी उनको 4 घंटे सॉल्व करनी है. तो वो लोग उसको एक्चुअली कोर तरीके से देखते हैं एंड ऑफ कोर्स उनका जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जैसे बताया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. आपको डायरेक्टली 3rd लेवल देना होता है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क इज देयर एनी अगर डायरेक्टली मतलब अगर CA नहीं हो और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके CPA करते हैं तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या आपके हिसाब से प्रतीक जी? Of course, the 12th standard level and graduation. In most of the areas, both are required. Of course, one तो है ये. So that is what is the minimum qualification required. And as you know, Keval bhai said, it's very important to focus on skills. Skills ही सबसे main चीज. अब skills को हम develop कर रहे हैं कहीं पे भी एरिया में जाएं तो that is going to be a long term winner for us. ऐसे ना case study based question है. So knowledge तो सबके पास ही है. अब एक जमाना था जहाँ पे अगर 25 स्टेट्स होते थे जो अपने स्कूल में पढ़ते थे वे बैक इन 2003 कोई अगर 25 स्टेट्स के नाम एक साथ बोल दे तो अरे वाह भाई ये तो नॉलेजेबल है.
बट आज के तारीख में वो सब काम तो हमारा गूगल करता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि किधर क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कौन से स्टेट में प्रॉब्लम है, केरला में क्या प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में क्या प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, राइट। सो अगर ये चीज़ों को जानना और उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना, अपॉर्चुनिटी सीज करना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही माइंड सेट होना चाहिए हम सबका। Correct. And also, Pratik ji, can you talk about ACCA? I think it is very much similar to CPA. So ACCA, Association of Chartered Certified Accountant. Can you please throw light on it? Yeah, ACCA is a UK-based. Just a minute. ACCA is a UK-based private organization. Okay, and it is having recognition in more than 150 countries. Okay, and but direct recognition नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चलती है, IFRS वहाँ पे कंपल्सरी है और बहुत अच्छी कोर्स है। इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट हु वाज वर्किंग इन एन अफ्रीकन कंट्री, ओके, एंड ही वाज हैविंग अ वेरी गुड पैकेज। थोड़ा सा अगर हम बात कर सकते हो उस भाषा में, अगर अलाउड है तो 30 लाख जैसा उसका पैकेज था। रवांडा कंट्री में था, इन सम पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी, एंड उसी के कॉलीग्स और उसके सीनियर्स ने उसको बोला कि कंप्लीट ACCA, वी वुड बी हैंडिंग यू ओवर बिगर पोजीशंस एंड डायरेक्टली आप CFA के लेवल पे वर्क कर सकते हो इन मेनी कंपनीज एंड योर पैकेज वुड बी जस्ट सिंपली डबल। सो आज छोड़ के वापस सूरत आया, अभी कुंबत में काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड कुछ तो करे, एंड देन ये स्टार्टेड ACCA एंड ही हैज कंप्लीटेड 2 पेपर्स। एंड ये बहुत बड़ा फायदा हमें एज अ CA, वहाँ पे 13 पेपर्स होते हैं ACCA के अंदर। उन 13 पेपर्स में से हमें 9 पेपर्स का एग्जामिशन है, मैंने हमें सिर्फ 4 ही पेपर्स देने। वो 4 पेपर्स आप चाहो तो एक साथ दे सकते हो और यू कैन डिमांड ऑन कॉल, पूरा फ्लेक्सिबल कोर्स होता है। मोर और लेस सारे फॉरेन कोर्स जो हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप ऑन डिमांड एग्जाम मंगा सकते हो, आपको टाइमली पैसे भरने, एग्जाम से जितना पहले पैसे भरते हो डॉलर्स के टर्म्स में सारी फीस होगी, उतना आपको कम लगता है, जितना लेट दोगे तो ज्यादा लगता है। एंड इन सब कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मस्ट होता है, बट ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही करना है। जैसे हमारे CA में आप इंटर क्लियर करोगे उसके बाद आपको एंटर करना है, एंड वो उसको करना ही पड़ेगा अंडर अ CA। ऐसा नहीं है, आपने जहां वर्क कर रहे हो दैट वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, जो आप डिग्री कर रहे हो, जो आप कोर्स कर रहे हो, बीट CFA FRN की बात करने वाले, एंड बीट इवन ACCA, अगर आप एज अ CA भी प्रैक्टिस कर रहे हो और रिलेवेंट एक्सपोजर आपके पास है तो उसको काउंट किया जाए। तो जो वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे 2 साल का है, कहीं पे 3 साल का है, वो सारा काउंट किया जाता है। कौन सी कंपनीज में आपने जॉब भी की है, प्रैक्टिस भी की है, सबको काउंट किया जाता है अगर वो रेलेवेंट और उनकी क्राइटेरिया में फिट होता है। इवन प्री ज्वाइनिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स और पोस्ट द कोर्स को भी वर्क एक्सपीरियंस में काउंट किया। सो दैट्स अ बिग एज, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्किल सेट होनी चाहिए। अब आपको स्किल हमारे हिसाब से बनानी है, अभी बनानी है, ऐसे रिजिडिटी नहीं है इन सब कोर्सेज के अंदर, राइट। एंड 6 मंथ्स के अंदर आप एक पेपर आइडियली दे पाते हैं विद द वर्क कल्चर। जब आप वर्क कर रहे हो, आप बॉम्बे में हो, बेंगलोर में हो, पुणे में हो, काफी लोगों ने भी ज्वाइन किए होंगे। सो बहुत अच्छा कोर्स है इफ यू आर अलाउड एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू फॉरेन कंट्रीज। बट एक बात भी ये समझे कि ACCA करने से सीधा कहीं पे गारंटी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज ये वेल रिकग्नाइज्ड इन टू यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल्सो सदर्न अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स दुबई एरियाज। बट इन सब एरिया में आपको वीजा का भी देखना पड़ेगा। कंपनी के अंदर आपको जॉब लगनी, वन चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, प्लस वो कंपनी आपके लिए वीजा का वर्क करेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड पोस्ट कोरोना वर्ल्ड थोड़ा सा डीग्लोबलाइजेशन की ट्रेंड्स एक्सेप्ट करेगा, एडॉप्ट करेगा, और वहां पे इट वोंट बी वेरी इजी टू गेट दीज थिंग्स। सो यस, वी शुड थिंक अपॉन, एंड अगर हमारी स्किल्स है तो ऑफ कोर्स कंपनी हमको ले जाएगी, राइट, एंड हमारे लिए वीजा का भी वर्क करेगी। वो भी एक स्ट्रगल रहता है, बट अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो ACCA, बीइंग अ CA, जितने भी लोग यहाँ पे CA मौजूद है, ACCA इज अ वेरी गुड कोर्स, बिकॉज वो CA जैसा ही है। और जैसा कि केवल सर ने बताया अभी कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ टैक्सेशन वगैरह जो है या IFRS वगैरह, वही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, और उनकी स्टडी इज अमेजिंग। आई हैव सीन वन ऑफ माय टीममेट्स पायल भी पढ़ रही है और उसकी किताब मैंने देखी है, मेरा मन किया कि मैं भी ज्वाइन करूं। इनफैक्ट आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट कि नॉलेज पर्पस से भी हमें ये करना ही चाहिए। सो बहुत बढ़िया केस स्टडी बेस्ड स्टडी मटेरियल है, और वो आप 6 महीने के बिना नहीं कर पाओगे अगर आप जॉब भी करें। तो मेरे हिसाब से एडवाइस रहेगी कि आप जॉब के साथ दिन में 2 से 3 घंटे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते स्टडीज के लिए। तो दैट वुड बी 6 मंथ्स में एक पेपर क्लियर कीजिए, 2 साल में आपके विद द जॉब क्लियर होते हैं, एंड आपकी फॉरेन एवेन्यूज खुली है, फिर आपको जाना नहीं जाना आपकी मर्जी। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, एंड CA जैसा ही होता है ACCA, जस्ट इंटरनेशनल लेवल। इसको मैं अगर मेरी भाषा में बात करूं, अगर MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के यहाँ पे फैन है आयरन मैन और थॉर वगैरह, तो यूँ समझ सकते हो कि जैसे कि आयरन मैन अर्थ का है, तो ऐसे CA इंडिया में है, तो वैसे ACCA आपकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी,
ठीक है, सो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो गए, दैट इज ACC. Correct. So thank you so much. I suppose there was in the chat box there was a query about ACCA. So I think it has got sorted as per the details provided by Pratik ji. Yes. So we can see that students are responding. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, Pratik ji. आगे बढ़ते हुए काफी कुछ पता चला. अच्छा, इस चीज को मैं ये जरूर बताऊंगी कि एक इंक्लूड करूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जहां आप जा रहे हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आप वो टारगेट करके वहां की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देख के यू डिसाइड अपॉन दैट आप किस तरीके से CPA कोर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं. सिर्फ CPA ही नहीं और कई कोर्सेज है जो हम डिस्कस करेंगे. इट इज इन लाइन विद द कन्वर्सेशन. तो नेक्स्ट अब बात करते हैं CFA की, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो लॉन्ग बैक, मतलब अब तो मैं उसके बारे में जान गई हूँ, बट लॉन्ग बैक ऐसा होता था कि मी बीइंग अ स्टूडेंट कोई CFA कर रहा है तो लगता है अच्छा हाँ कुछ होता है. तो पूरे क्राउड में देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हु नोज अबाउट CFA क्या है, क्यों करना है, जस्ट बिकॉज दे हैव द नॉलेज अबाउट इट. So for our viewers and for our students, I would like you to request you to please talk about CFA, कि वो उसका स्कोप क्या है, कौन सी कंट्री के लिए वो किया जाता है, and so on. Yes, Keval ji, please proceed ahead with this. Okay, so you want me to talk about CFA? Okay, आप मैडम है ना, पहले मुझे बोल दो कि केवल जी आपको क्वेश्चन है, नहीं तो मेरा दिमाग कहीं और जगह पे चल रहा है, फिर पता चल कि ये क्वेश्चन मेरे पास है. मेरे को क्लास जैसा फील हो रहा है कि एकदम सडनली आ जाता है. बट यस, आई सी टू इट के पहले अब मैं आपको बता दूं केवल जी आपको ये क्वेश्चन आता है. Yes. Okay, so people wants to know about the CFA because I have cleared 2 levels, so I'm definitely I can tell you about my practical experience also about how I have done the CFA. CFA करने के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो काम है वो बता देता हूँ. लाइक पीपल हु हैव क्लियर्ड 12th कॉमर्स रिसेंटली and अगर if they are planning for the CFA, then let me tell you, you cannot do CFA directly after completing your 12th commerce. ठीक है, either you need to be in the 3rd year of the BCom or you should have completed your graduation. CFA करने के लिए पहले इसकी जरूरत होती है. दूसरी, CFA ये कोर्स जो है दैट इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो इंडिया के अंदर CA कौन करवाता है, तो भाई ICAI करवाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. उसी तरह CFA जो करवाता है वो CFA की इंस्टीट्यूट है जो US बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वो करवाती है. मतलब इट इज अ ग्लोबल लेवल कोर्स, इट इज अ ग्लोबल डिग्री. So when it is a global degree and it is a global level course, तो बहुत सीधी सी बात है भाई, अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड नहीं चलेगा वहां पे. So for doing CFA one needs to have the passport. ठीक है, अगर आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना है तो आपको आपका पासपोर्ट निकालना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेरी हमारे पास बहुत बार आती है कि सर मुझे CFA की एग्जाम देनी है दिसंबर के अंदर, सर फॉर्म भर दो, कल लास्ट डेट है. फिर हमको पूछते भाई बेटा तेरे पास पासपोर्ट है? नहीं सर पासपोर्ट तो नहीं, तो पहले पासपोर्ट निकाल फिर तो फॉर्म भर. सो पासपोर्ट इज द प्रीरिक्विजिट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बोला कि you need to go in the 3rd year of the BCom or you need to complete your graduation, then and only you can go ahead with the CFA. Now CFA के कितने levels होते हैं, तो there are 3 levels for the CFA, level 1, level 2, level 3, just like in CA there are 3 levels. And CFA level 1 की अगर बात करें, level 1 और level 2 के अंदर टॉपिक्स दोनों के अंदर कॉमन होते हैं. ठीक है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि level 2 के अंदर टॉपिक्स थोड़े एडवांस लेवल पे आते हैं, level 1 के अंदर थोड़े बेसिक लेवल पे टॉपिक्स आते हैं. एंड लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो लेवल 3 इज मोर स्पेसिफिक अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है, वहां पे 50% जो वेटेज है पोर्टफोलियो का ज्यादा वेटेज है. सो लेवल 3 इज मोर अबाउट स्टॉक मार्केट एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. लेवल 1 एंड लेवल 2 कवर्स मेरियस टॉपिक्स ऑफ द फिनेंस, लाइक इकोनॉमिक्स भी वो कवर करता है, वो डेरिवेटिव्स भी कवर करता है, वो अकाउंटेंसी के भी कुछ पार्ट्स को कवर कर रहा है, कुछ पार्ट्स वो एथिक्स के भी कवर करता है, बिकॉज एथिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाटएवर यू डू. So there are 10 different topics for level 1 and level 2. मजे की बात जो ये है ना, ये कोर्स की मजे की बात ये है कि there is no passing criteria. कोई अगर ये पूछता है कि सर पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो सर nobody can answer you anything. ठीक है. Now let me tell you very honestly my experience of dealing with the CFA. When I give my CFA level exams, तो in 2016 मैंने CFA level 1 की एग्जाम दी थी. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब एग्जाम्स अपने लिए बहुत इजी हो जाती है, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. सो CFA लेवल 1 तो अपने बहुत आराम से क्लियर कर दिया, जस्ट स्टडी ऑफ फ्यू मंथ्स एंड दैट्स इट, आई क्लियर CFA लेवल 1. CFA लेवल 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो CFA लेवल 2 के लिए भी मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी. नाउ दैट इज समथिंग बैड साइड.
मैं वो चीज लोगों को नहीं कहूंगा, मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। सो आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स, आई गेव द एग्जाम्स एंड अल्टीमेटली ये टेस्ट था ऊपर वाले का। मैंने ये बोल के रखा था कि मैं तो फेल हूँ, आज अगर ऊपर वाला पास कराएगा तो मैं पास हो जाऊंगा इसके अंदर। तो ये टेस्टिंग मेरा नहीं, टेस्टिंग ऊपर वाले का, मेरा कर्मा का टेस्टिंग है। सो और मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड था, उसने बेचारे ने बहुत मेहनत की थी, उसका पेपर भी अच्छे गए थे। एंड व्हेन रिजल्ट्स केम, तो रिजल्ट ऐसा था कि मैं पास था और वो फेल था। Now the thing was, मैंने तो रिजल्ट 2 घंटे तक देखा भी नहीं था। I was 100% श्योर कि अपने इट्स अ नेगेटिव रिजल्ट, रिजल्ट देख के क्या करना है, फोकट का कोई मेल वेल चेक नहीं करना है अपने को। उसने बोला कि यार चेक तो कर। मैंने बोला चल ठीक है। 2 घंटे के बाद मैंने बोला कि चल ठीक है चेक करता हूँ। I cleared the CFA level 2। Now the thing was कि कैसे पास हुआ, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, वो तो बहुत महीने से पढ़ भी रहा था, उसने तो बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस भी की थी, उसके पेपर्स भी अच्छे गए थे। मेरे पेपर्स भी इतना अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल आई क्लियर। सो द पॉइंट वाज, उन पेपर के अंदर जिस जिस चीजों का उन्होंने वेटेज रखा था वो मेरा सही था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वो जो 80-20 प्रिंसिपल आता है ना, अपने सीए के अंदर पढ़ते 80-20 प्रिंसिपल, मेरा 20% जो पेपर था ना वो सही था, जो एक्चुअल में 80% मार्क कवर कर रहा था। उसका 80% पेपर सही था, लेकिन वो 20% वेटेज कवर कर रहा था। अब ये अपने को पता नहीं चलता है पेपर दे के आने के बाद कि भाई ये कितना अपना सही है, कितना अपना गलत है। सो सीएफए की खासियत ये है कि देयर आर नो पासिंग क्राइटेरियाज, कि भाई जैसे अपने सीए के अंदर तो होता है कि भाई यू नीड टू क्लियर विद द 40 मार्क्स एंड यू नीड टू क्लियर विद द 50% ऑफ टोटल मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। 12th आप देते हो तो भाई 35-40 मार्क्स आपके पासिंग क्राइटेरियाज होते हैं। सीएफए के अंदर देयर इज नो पासिंग क्राइटेरियाज। सो ये मजा आती है, ये ऐसे एग्जाम्स देने की मजा है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीए के अंदर अपने को है ना बहुत सारे जगह पे लोग वेटेज दे के रखते हैं कि भाई इसका इतना इतना वेटेज है, तो बच्चे उसके हिसाब से स्मार्ट वर्क भी करते हैं। लेवल 2 के अंदर मेरा कबाड़ा यही हुआ था। लेवल 2 के अंदर कई मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब के ऊपर, और उन्होंने जो हम लोग एक रेफरेंस बुक प्रीफर करते हैं वहां पे भी उन्होंने एक वेटेज दे के रखा था कि इसका इतना इतना वेटेज होगा। अब जिस चीज का वेटेज उन्होंने 16% दे के रखा था, वो चीज आई एक्चुअल में 48% उस पेपर में। 16% का वेटेज के सामने 48% मतलब जरा इमेजिन करो 3 गुना वो उस चीज का वेटेज बढ़ गया था। सो ये कोर्सेज की मजा क्या है कि देयर इज नो वेटेज, आप अपने हिसाब से पढ़ के जाओ, एंड खुला मैदान है वहां पे। उनके पास कंप्लीट केस स्टडी वाइज पेपर्स होते हैं, एंड पेपर देने की बहुत मजा आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये ऐसे कोर्सेज जब आप करते हो ना, तो एनालिटिकल माइंड आपका बहुत शार्प होता है। कई बार ऐसे कोर्सेज मैं इसलिए सिलेक्ट करता हूँ करने के लिए। सो सीएफए की अगर बात करें तो उसकी एग्जाम्स साल में 2 बार होती है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। लेवल 1 की एग्जाम्स जून और दिसंबर दोनों में होती है। लेवल 2 एंड लेवल 3 इट हैपेंस ओनली इन जून ओनली, ठीक है। सो अगर टाइम पीरियड की कोई बात करें तो कितना साल में आप सीएफए खत्म कर सकते हो, तो सीएफए खत्म करने के लिए अगर आप सब कुछ एक बार में निकाल देते हो एक ही शॉट में, तो यू कैन कंप्लीट सीएफए ऑल द 3 लेवल्स इन 1.5 इयर्स। एंड अगर आप थोड़ा ब्रेक लेते हो बीच में, तो मेरे हिसाब से 2.5 साल के अंदर मैक्सिमम लोगों का सीएफए खत्म हो जाता है। एंड इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जिस तरीके से अपना स्कूलिंग एक होता है, बच्चे का जिस तरीके से अपने यहाँ पे अपब्रिंगिंग होता है, ग्रोन अप होता है, ठीक है, कोचिंग से लेकर स्कूलिंग से लेकर, वी आर टू मच बर्डन विद द स्टडीज, एंड दिस इज द फैक्ट्स एज कम्पेयर टू द फॉरेन कल्चर जहाँ पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता है। तो इंडियंस के लिए तो सीएफए इज नॉट ए टफ टास्क, अपने वाले तो फटाफट ऐसे ही क्लियर कर जाते हैं। सो इट इज नॉट ए टू टफ थिंग। The only thing is CFA करने के पीछे का आपका कारण क्या है वो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आजकल जो मैं देखता हूँ 90% लोग CFA कर रहे हैं जस्ट फॉर द फैशन। वो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये शब्द अच्छे लगते हैं, ग्लोबल डिग्री है, CFA है, लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ CFA US है, यस हाँ US है, हाँ। सो ये तो फैशन जो चली है ना, फैशन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। करने बैठोगे तो पता चलेगा, एक तो टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है और मनी का भी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ये सीए जितना अपना सस्ता कोर्स नहीं है। अगर मैं सिर्फ ग्लिम्स देने की बात करूँ तो इसकी जो लेवल 1 की मैंने फीस भरी थी, मैंने थोड़ी डेडलाइन मिस करने के बाद फीस भरी थी, आदत से मजबूर हूँ मैं। सो डेडलाइन मिस करता हूँ, उसके बाद ही कुछ चीजें करने की इच्छा होती है। तो मैंने फीस भरी थी लेवल 1 की 90,000, एंड दैट इज टू हाई। एंड टिपिकल पार्टीज अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो सेकंड टाइम अगर आप एग्जाम देते हो तो वापस आपको 90,000 भरना पड़ता है। देयर इज नो एग्जम्पशन। सो कोर्स महंगा है। टाइम का अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो मैक्सिमम क्राउड अगर यहाँ पे जो है वो 21-22 की साल का है, तो उनको टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मनी का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो सीएफए जब आप करते हो तो थोड़ा सोच समझ के करना। फैशन डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये कह देता हूँ
क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं सब कुछ कर देता हूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल है ना लोगों का ये थोड़ा एटीट्यूड हो चुका है, सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए पहले क्या किया था, बीकॉम के साथ सीए तो कर लिया था, अब सीए करते करते क्या सीएस और सीएमए के एग्जाम्स भी आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। जैसे प्रतीक भाई ने बोला कि 75% 65% तो सीए के अंदर आ जाता है, तो लोग सब खत्म कर लेते हैं। फिर भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, तो ज्यादा सर सीएफ भी कर लेते हैं। सर डिग्री अटेंड करना बड़ी बात नहीं है सर, इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी क्लियर विथ योर माइंड एंड विथ योर पाथ। सो आई थिंक this is all about CFA US. आशा थोड़ा ऐड कर दूं मैं इसमें? बिल्कुल इनफैक्ट पहले तो केवल भाई मजा आ गया, आपने बहुत अच्छे से और ऑनेस्टली पुट अप किया। जहाँ पे भी सीएफए की बात करते हैं तो यूजुअली लोग वो बात करते हैं जिनको अपनी बात करनी होती है, अपनी कुछ मार्केटिंग या हिडन एजेंडाज है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही है और वो आधी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत लूसिड मैनर में बहुत अच्छे से कवर की चीजें जो एकदम फैक्ट है। तो ऑडियंस आप सबने पूरा अच्छे से सुना होगा, इन सब बातों को नोट करें। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें और ऐड कर देकर किसी के मन में सवाल है तो सीएफए क्या करता है सबसे मेन, मतलब जैसे कि हर्षा मैंने भी कहा था कि हमें कंट्री देखनी चाहिए, एट द सेम टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मैं अपने आप को लाइफ में क्या करते हुए देखता हूँ, किस तरह का जॉब है। मैंने आगे भी मेरे वक्तव्य में कहा था, राइट? तो वो देखिए, तो सीएफए क्या करता है ना, सीएफए ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी के अंदर, जिसके अंदर हमेशा सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर बालकृष्ण भैया भी बोलूंगा भैया अभी कितना लगाना, तो भैया बोल देंगे पड़ा है पर कुछ लाख रुपीस कहीं लगा दो, कहीं देख लो। सो हमारे पास पैसे होते हैं जो हम देख सकते हैं मैं किन सेक्टर्स में डालूं। तो देयर आर डिफरेंट एसेट क्लास। सिंपल बात करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल हार्डकोर बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, राइट? सो हमारे पास वेरियस एसेट क्लास होती है। उस एसेट क्लास में पैसे कैसे मैनेज करें कंपनी के सरप्लस फंड्स को, जिससे कि कंपनी की सरप्लस फंड्स को भी ढंग से एक छोटा सा रिटर्न जनरेट करके कंपनी को दिया जाए, और एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करनी होती है लिक्विडिटी की, कंपनी को जब वापस पैसा चाहिए वापस मिल जाए। तो ये जो कंपनी का काम होता है ना, वो सीएफए बहुत अच्छे से मैनेज करता है, और ये प्रोफाइल सिर्फ एमबीए फाइनेंस और सीएफए को ही दी जाती है वर्ल्ड वाइड। तो ये प्रोफाइल बहुत नीश प्रोफाइल है, मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफाइल है, हर कोई यही चाहता है, हर कोई ये बनना चाहता है, बिकॉज इट इज वेरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग। इसमें टास्क कितना है, आप जितना चाहो उतना टास्क है। इसमें आप आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ते रहो, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सिनेरियो देखते रहो, चाइना यूएस को एक्सप्लेन समझो और ट्रैक करो, आप गवर्नमेंट अमित शाह क्या कर रहे हो ट्रैक करो, हमारे मोटा भाई क्या कर रहे हो ट्रैक करो, सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप सोच पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करेक्ट है। सो ये जॉब है ना, स्पाइडरमैन की मूवी का एक बहुत पंचलाइन है वैसा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसा जॉब है। ओके, तो ये बहुत चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल जॉब भी है, एट द सेम टाइम इसमें पे पैकेज की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब आप L2 क्लियर करने के बाद भी इफ यू आर पैशनेट इनफ एंड यू हैव दैट नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज एंड द बिजनेसेस एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड यू कैन पुट इट इनटू राइट पर्सपेक्टिव एंड यू कैन वैल्यू इट वेयर इट इज चीप। If you can do that, you can not only do good for yourself, your company, for people, fund management जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सब के अंदर ये सब की रिक्वायरमेंट आती है। वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्निशन है और कंट्री के अंदर रिकॉग्निशन है। कंट्री के अंदर मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में इसकी ज्यादा रिकॉग्निशन आएगी, लेकिन इसकी वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है। मॉर्गन स्टैनली, ब्लैकस्टोन, इस तरह की कंपनीज आपको रिक्रूट करेगी और बहुत सारी कंपनीज है, राइट? सो सीएफए इज एन अमेजिंग कोर्स। ये आपको, जैसा सर ने बताया, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट से कंटिन्यू होते हैं, ऑडिट, इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, इकोनॉमिक्स, आपको पूरा अच्छे से समझाता है स्क्रैच से सब कुछ। अच्छा, आपको कुछ नहीं आता, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी सीएफए कर सकते, और L1 और L2 दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। L3 के अंदर 50% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये सारी बातें मतलब ध्यान में रखिए। पूरा एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है, एप्लीकेशन आपको माइंड ढंग से अप्लाई करना है, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, एंड जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी कुछ ठिकाना नहीं होता कि रिजल्ट क्या आएगा, कैसे पास करेगा, देयर इज नो क्राइटेरिया, कहीं से भी कुछ भी आता है, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे पार्टनर है ऋषभ सर जिसने क्लियर किया था, और हमारे एक पार्टनर है अरविंद सर, आपने सुना होगा निवेश आई, तो उनका L3 वो पागल है फाइनेंस के पीछे, इन्वेस्टमेंट के पीछे, उनका बिजनेस ही उसने यही बनाया, सब कुछ छोड़ के उन्होंने इन्वेस्टमेंट का काम किया। He did not clear L3, whereas Rishabh cleared L3, despite the fact कि उसके दिन में 12 घंटे के बैच होते थे डेली, एंड उसमें पता नहीं कैसे मैनेज करके एग्जाम दिए, बिकॉज अगेन सर जैसा क्या कौन सी क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है पता नहीं। तो इट्स लॉजिकल एंड इट्स अमेजिंग कोर्स, एंड करना चाहिए अगर आप इसको टारगेट करते हो। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। MBA फाइनेंस इज आल्सो वेरी गुड, बट MBA फाइनेंस इज समथिंग आपने टॉप 20 कॉलेज से नहीं किया तो कोई वैल्यू नहीं, टॉप 20-25 पकड़ लो, उसके बाद तो उसकी वैल्यू मतलब ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कर लो, आपको लगता है कि आप 4 लाख 5 लाख की साल का कमा रहे हो तो डेफिनेटली आप 8-9 लाख पे आ जाओ, अदरवाइज MBA टॉप 50 से भी करने से मतलब नहीं।
25 to 50 पे भी नहीं करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी 9-10 लाख 12 लाख के पैकेज पे हो ही। तो मेरे हिसाब से आपको MBA इन फाइनेंस फ्रॉम टॉप 20 हमेशा टारगेट करना चाहिए। उसके लिए प्रोफाइल चाहिए, उसके लिए कैट स्कोर चाहिए, 10th रिजल्ट चाहिए, 12th रिजल्ट चाहिए, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए, आपने CFA क्लियर किया तो भी आपको फायदा करेगा, किस बैंड्स पे क्लियर किया, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और MBA फाइनेंस टॉप कॉलेज से करना मैं चूज नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को करना है, मैंने एग्जाम दी, इफ आई एम एलिजिबल आई गेट चांस, नहीं तो नेक्स्ट ईयर। CFA इज समथिंग यू कैन गिव, राइट। और दोनों को सेम प्रोफाइल मिलती है। MBA फाइनेंस इतना कोर आपको फाइनेंस नहीं पढ़ाएगा, आपको सुपरफिशियल लेवल पर तैयार करने वाला है, बट आपको रियलिटी, हार्श रियलिटी, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स में वर्क करना सिखाएगा। बिकॉज अगर आप टॉप 20 स्कूल से MBA करते हो तो आपका वर्क कल्चर होता है 15-16 आवर्स अ डे, और आपकी जो देश के बेस्ट खोपड़ियों के बीच में, बेस्ट होशियार लोगों के बीच में आप वहाँ पे वर्क कर रहे होते हो, 400-500 लोग, तो पीयर लर्निंग अमेजिंग लेवल की है, राइट। जैसे कि मेरे को बालकिशन मैंने एक बार बताया था कि ऋतिक अगर आपको बनना क्या है ना, उसके बेस्ट फील्ड के बेस्ट लोगों के साथ रहो, साथ नहीं रह सकते तो उनको फॉलो करो। बिकॉज आप जिनके साथ रहोगे, जिनके बारे में सुनोगे, जिनको फॉलो करोगे तो आप ऐसे बनोगे। तो मैं तब से मोटा भाई को फॉलो करूँ ठीक है, अपने को मोटा भाई जैसे ही बनना है। बिकॉज गुरु मूवी ने वो एक हमें बताया भी है कि उनके पिताजी कैसे थे, कैसे वर्क करते थे, थोड़ा वैसा बनना है। तो मोटा भाई को कुछ नहीं छोड़ते मोटा, ठीक है, ना ट्वीट छोड़ते हैं, ना वीडियो छोड़ते हैं, ना AGM छोड़ते हैं, ना कॉन कॉल छोड़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट समथिंग वी हैव टू लर्न, वी टू बिकम, ओके, एंड यही चीज हमें करनी चाहिए। तो MBA फाइनेंस के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए कि MBA फाइनेंस आप करोगे बेस्ट कॉलेज से तो बहुत फायदा, नहीं कर सकते तो CFA इज वेरी गुड, राइट। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अच्छा हमें शायद जल्दी FRM पे जाना होगा बिकॉज एक दो रिक्वेस्ट उसकी भी आएगी है। All right, yes, but then definitely whatever you added was actually important for the students to have the complete knowledge from both of you as you have provided. तो जैसे इन लोग ने बताया, स्पीकर्स ने जिस तरीके से मेंशन किया, इससे कि अगर आप फाइनेंस के पीछे एकदम बावले हो, फाइनेंस करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड विद आइदर MBA finance, that too from the top B colleges or through the CFA, and packages तो unlimited. Anyways, proceeding ahead with FRM. So yes, Keval ji, yes, now coming up to FRM. FRM is about financial risk management. So I think this is not a degree course but a certification, right? So can you please tell about the FRM to our viewers? Yeah. ठीक है. FRM is all about financial risk manager. FRM का कोर्स कौन करवाता है? तो there is an institute, that is a GARP, GARP, which is again a US based institute, that is a Global Association of Risk Professionals. ठीक है, GARP. तो ये जो GARP की इंस्टीट्यूट है, US बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और ये कोर्सेज वहीं से आपका होगा। Along with that, FRM का और CFA दोनों का, CFA के अंदर मैं सिर्फ बताना भूल गया, CFA के अंदर और FRM के अंदर, दोनों के अंदर एग्जाम सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है बहुत अच्छे से। अहमदाबाद के अंदर भी एग्जाम सेंटर है और मुंबई के अंदर भी एग्जाम सेंटर है। मुंबई के अंदर जो मेरा एग्जाम सेंटर था ठाकुर विलय, ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप एग्जाम देते हो तो 1 घंटा पहले निकलना, मुंबई के अंदर है तो फंस जाओगे, ठीक है। लाइक 9 बजे की एंट्री थी एंड आई वाज देयर एट 8:55। मुंबई इज अ टफ सिटी। सो दोनों के लिए एग्जाम सेंटर आपके पास इंडिया के अंदर आराम से अवेलेबल है। FRM की अगर बात करें तो FRM की एग्जाम्स साल में 2 बार होती है, जून एंड दिसंबर। एंड FRM के 2 ही लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। दोनों की फीस डॉलर्स में आपको पे करनी होती है। दोनों कोर्स अराउंड आपको $1500-1600 के आजू-बाजू आपको पड़ेंगे, $1700 के आजू-बाजू। ये है एक बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द FRM। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट, व्हाई वन शुड डू विद द FRM, एंड बेसिकली FRM के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। तो FRM ये CFA से भी थोड़ा और आगे जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बात करता है रिस्क मैनेजमेंट की। CFA लोग प्रीफर ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि CFA के अंदर जो मैंने बोला कि 10 अलग अलग टॉपिक्स है, इसलिए CFA बहुत सारी एरियाज वाइड कवर करता है। अगर आपको इक्विटी एनालिस्ट बनना है, अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, अगर आपको F&O में जॉब करना है, काम करना है आपको, ठीक है, तो बेसिकली आपको CFA करना चाहिए। नाउ सी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई एम टेलिंग टू ऑल द व्यूअर्स। यहाँ पे आपको 2 कोर्स का कहाँ पे बड़ा फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपने CFA किया है तो आप जॉब कहाँ पे करोगे, तो आप जॉब बेसिकली करोगे एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज ए इक्विटी एनालिस्ट। मार्केट के अंदर जो लोग बैठते हैं, शेर खान वगैरह, फंड मैनेजर जो होते हैं, वो ये सब बेसिकली जो CFA होते हैं, ये सब फंड मैनेजर वगैरह होते हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द FRM, तो FRM इज बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट, एंड ये चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर।
बैंकिंग सेक्टर के अंदर मतलब मैं बात करता हूँ ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट, डॉलर्स का जो मैनेजमेंट करना होता है, ये जो रिलायंस है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है TCS, विप्रो से लेके जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कंपनीज है, तो उनका जो फंड मैनेजमेंट होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट जो होता है, तो ये डिपार्टमेंट के अंदर कौन काम करता है? बैंकिंग के अंदर जो काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे FRM प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि FRM प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। रिस्क किस तरीके से वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या रिस्क आ सकता है, एंड उसका मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। तो FRM इज मच मोर स्पेसिफिक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। CFA अभी भी इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। CFA कवर्स 10 डिफरेंट टॉपिक्स एंड ये बहुत वाइड एरिया कवर कर रहा है, इसलिए CFA काफी वाइड एरिया हो जाता है। FRM इज अ मोर स्पेसिफिक एरिया जो उसी के अंदर ही आपको काम करवाएगा। सो FRM तभी करना चाहिए जब आप बहुत ही क्लियर हो कि आई वांट टू वर्क इनटू दिस रिस्क प्रोफाइल एंड आई वांट टू वर्क इनटू दिस होल डिपार्टमेंट, देन एंड देन ओनली यू शुड गो अहेड विद द FRM। अदरवाइज अगर आपको फिनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है एंड स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, F&O, कमोडिटी मार्केट, ये सब के अंदर अगर आपको काम करना है तो CFA ही आपके लिए काम का है, वहां पे FRM काम का नहीं है। ये जो मैंने आपको डिस्टिंग्विश करवाया है, ये आपके लिए दो लाइन एकदम अलग कर देगा, CFA कहाँ पे काम आता है और FRM कहाँ पे काम आता है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन खड़ा होता है सेशन के बाद कि सर CFA और FRM में सब क्या करें। तो जो मैंने बोल दिया, FRM की रिक्वायरमेंट ज्यादा बैंकिंग के अंदर ही रहेगी। CFA के अगर आपने किया है ना, तो जो अभी प्रतीक भाई ने बोला, अरविंद भाई CFA है, ऋषभ भाई CFA है, तो CFA अगर आपने किया तो उसकी आपको उसका यूज आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर FRM किया तो उसका यूज आप इतना नहीं कर सकोगे जितना आप CFA का यूज कर सकोगे। तो ये दो के बीच में आसमान जमीन का फर्क है। एंड जो प्रतीक भाई ने बोला सिर्फ उसके अंदर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, MBA अगर आप करते हो तो MBA इन फाइनेंस का मैक्सिमम यूज कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना एक लाइन, एक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो MBA फाइनेंस का वहां पे रोल बहुत बड़ा हो जाता है। Let me tell you very clearly, my student who has done CA and CFA all the 3 levels, but उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दरवाजे खुले नहीं है। The reason being is इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की 50 से 60% फील्ड तो है ना MBA फाइनेंस वालों ने कवर करके रखी हुई है। सो MBA फाइनेंस का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस कहाँ पे, जो प्रतीक भाई ने बोला, वो सबसे पहला अगर आप आलतू फालतू कॉलेज से करोगे तो MBA का कोई सेंस नहीं बनता है, करने की कोई जरूरत नहीं, शांति से घर पे बैठो, इट्स मोर देन इनफ। MBA करना है अच्छी कॉलेज से करो तो ही जाके उसकी वैल्यू है। एंड MBA इन फाइनेंस की अगर आपने स्पेसिफिकली बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बहुत है। अगर आप ये सोचते हो कि CA करने के बाद, CFA करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दरवाजा खुल जाएगा, शायद तक नहीं खुलेगा। एट द एंड कहानी वापस वही पे आएगी, अब करे तो करे क्या। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अगर आपको दरवाजा खोलना है तो सिर्फ मैं एक चीज एड ऑन कर देता हूँ, फ्रांस के अंदर एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड के टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आती है, जो स्पेसिफिक है फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड गो देयर। One of my CS student is there into France only. She is into France, CS done CA CFA, दरवाजा नहीं खुला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। लेटर ऑन सी रियलाइज्ड कि मुझे तो ये फील्ड में जाना था, लेकिन अब ये 2 डिग्री से तो काम चल ही नहीं रहा है। सो शी वेंट टू फ्रांस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर उसने वहां पे कोर्स में एडमिशन लिया है। दैट कॉलेज इज अमंग द टॉप 50 कॉलेजेस एंड नाउ शी इज डूइंग द इंटर्नशिप इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड देन एंड शी इज गोइंग टू एंटर इनटू दिस होल फील्ड। सो माय ओनली पॉइंट इज, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना फ्रांस वाली लड़की का, उस एग्जांपल से मैं ये कहना चाहता हूँ, डिग्री खत्म कर लो, उसके बाद ढूंढने मत जाना कि अब क्या करना है। पहले ये सोच लेना कि मुझे करना क्या है, फिर उस चीज को करने के लिए आप कौन सी डिग्री चाहिए वहां पे आना। अपनी सोसाइटी है ना पूरी गलत जा रही है, पहले सब कुछ खत्म कर लेते हैं, पहले 12th खत्म कर ले, तो CA खत्म कर ले, फिर सोच अब तेरे को करना क्या है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। पहले ये डिसाइड करो कि मुझे बनना क्या है, फिर रिवर्स जाओ भाई वहां पे तक अगर मुझे पहुंचना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। सो CA जो बैंक में है उनके लिए FRM, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल समझ आती है तो यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज 1 साल में खत्म कर दोगे आप, 1 साल भी दे सकते हो, 6 महीने में आता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप काम कर ही रहे हो वो काउंट किया जाएगा उसके लिए। तो ये बहुत नीश और बहुत मतलब इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, जैसा कि केवल सर ने कहा कि जो CA है जो बैंक में है या बैंक पे काम कर रहा है उसको उस प्रोफाइल में जाना है तो FRM कर ले, CA नहीं किया तो भी कर ले, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और FRM कंप्लीट कर दीजिए आप। वो बहुत नीश फील्ड के लिए है एंड आई थिंक थोड़ा सा भी आप गूगल सर्च करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि किस पर्सन के लिए ये सही है। एंड बहुत सही बताया। वी कैन मूव अहेड विद द प्रोग्राम हर्षा। ये आप जो बता रहे हैं कि
रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें। मेरे को अभी ये मैंने अपडेट देखा था कि जो CA फाइनल के स्टूडेंट्स है उनमें ये चेंज आ गया है कि अब उनको इसका हटा के 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से उनको एक चूज करना होता है और ओपन बुक एग्जाम देनी होती है वो ऑप्शन सब्जेक्ट्स में से, जिसमें एक रिस्क मैनेजमेंट है। तो क्या वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करते हुए कैन यू गाइड द स्टूडेंट्स के ये फील्ड में जाना है तो दिस इज द बेटर ऑप्शन एंड दैट टू ओपन बुक का सिग्निफिकेंस व्हाइल राइटिंग डाउन द एग्जाम? यस प्रतीक जी, would you like to highlight about it? Yeah, to be honest, being a CA coach, we try to look it as a very different perspective. This have been designed in the right perspective कि इसको हम आगे क्या करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट करो, बट प्राइमरीली अभी तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि अभी CA क्लियर करना है, फाइनल में जो बंदा खड़ा है ना, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, किसमें हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चूज लाइक दैट। तो अभी 2 चीज बहुत अच्छे से निकल के आती है, जो आपने कहा, एक रिस्क वाला और एक लॉ वाला सब्जेक्ट, इकोनॉमिक एंड लेबर लॉ, तो ज्यादा बेटर चॉइस बनती है जो CA फाइनल में उन स्टूडेंट्स के लिए। बट ये सर हम इसको अलाइन कर सके विद अवर ड्रीम्स, तो ये मेरे ख्याल से सब्जेक्ट को देख के समझ में आ जाएगा जो स्टूडेंट CA फाइनल के अंदर है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मतलब किधर जाना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी प्रैक्टिस जाना तो रिस्क वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, और अगर फाइनेंस की फील्ड की थ्योरी पढ़नी है तो हमारा वो वाला एक सब्जेक्ट है फाइनेंस वाला, एंड अगर हमें रिस्क वाली जो FRM वाली फील्ड है, बैंक फील्ड में जाना है तो रिस्क वाला सब्जेक्ट है। और इवन दैट इज नॉट जस्ट FRM, दैट इज द गुड पार्ट ऑफ ISCAN है, जो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था ICSA, तो उसका अच्छा पार्ट ले लिया कि जो रिक्वायर्ड पार्ट है प्रोफेशनल को सीखना चाहिए वो उतना उसमें डाला गया। सो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी चॉइस है, बिकॉज वो चीज हमें बिजनेस में, लाइफ में हर जगह काम है। इट इज नॉट जस्ट प्रैक्टिस में, कहीं पे भी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है बहुत अच्छी दी है और रिक्वायर्ड टेक्निकल्स में बहुत कम ले जाके रिक्वायर्ड नॉलेज दिया गया। तो आई थिंक इस तरह से हमें चूज करना चाहिए टू सम अप वेरी शॉर्ट। करेक्ट। यस प्रतीक जी, आपने बताया कि बच्चों का परसेप्शन क्या रहता है चीजें क्लियर करने का, एंड ऑफ कोर्स यस केवल जी वुड लाइक टू ऐड समथिंग। वही पॉइंट के ऊपर एक्चुअली मुझे एडिशन करना था कि इंस्टीट्यूट तो सही माइंडसेट से चीजें लेके आती है, ठीक है, अगर हम उसको सही चीज को नहीं लेंगे ना, हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे ना, तो फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। Then you cannot blame anyone. कई बार स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं ICA को, कई बार हम लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पे सिस्टम का लूपहोल है, यहाँ पे सिस्टम का लूपहोल है। 10 जगह पे सिस्टम का लूपहोल हो सकता है, लेकिन जब सिस्टम अगर सुधर रही है और आप अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, और फिर आप वहां पे अगर आप अपना पर्सपेक्टिव सिर्फ एक कहते हैं ना शॉर्ट टर्म सोच के, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अगर आप चल रहे हो, तो वो गलती फिर स्टूडेंट्स की है। एंड देन यू कैन नॉट ब्लेम सिस्टम, देन यू कैन नॉट ब्लेम ICI बहुत अच्छे तरीके से ये चीज को लेकर आई है कि भाई आपको जिस फील्ड में आगे जाके कैरियर बनाना है, अब वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। CA फाइनल के अंदर जो सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया है रिस्क मैनेजमेंट का, वो सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने बहुत ही छोटा सा एक पर्सपेक्टिव दिया है स्टूडेंट्स को कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द रिस्क मैनेजमेंट इज। स्टूडेंट्स को आगे जाके इसके अंदर बहुत लंबा काम करना है अगर आपको ये फील्ड के अंदर आगे जाना हो, बट एक उन्होंने ग्लिम्स तो दे दिया कि बेसिकली ये फील्ड है क्या। अब अगर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मैं ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं जो सब्जेक्ट मुझे पास होने में बेनिफिट करवाए, जो सब्जेक्ट मुझे मार्क्स बढ़ाने में बेनिफिट करवाए, तो वापस हमारी सोच वहीं पे आके अटकती है कि कहाँ से मेरे मार्क्स बढ़े। जब तक ये सोच आपकी सुधरेगी नहीं ना, जब तक आप यहाँ पे चेंज नहीं लाओगे ना, तब तक CA, CFA, FRM सब कुछ कर लो, आप वापस वहीं पे ही आके अटक जाओगे। तो ये सोच बदलने की जरूरत है सबको। बिल्कुल सही बताएं, एंड आई एम श्योर कि कंपेयर्ड टू लास्ट प्रीवियस ईयर्स से अब अगर हम देखते हैं बच्चों को, तो उनका परसेप्शन काफी वाइड हो गया है। ऐसा नहीं है कि 100% हो गया है, बट हाँ, बच्चे अब एक्चुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचने लगते हैं कि मैम इसका क्या फायदा होगा, ये करेंगे तो इससे क्या होगा, एंड दैट्स द रीजन कि इस तरीके से हम डिस्कशन करके ये चीजों को और अवेयर करवा देते हैं। तो आई एम श्योर अब ये सेशन के बाद कोई ब्लाइंडली नहीं बोलेगा कि मैं तो FRM कर रहा हूँ, मैं तो CFA कर रहा हूँ, बिकॉज ये सेशन के बाद सच में, और मजे की बात ये है कि एड-ऑन्स है, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट से नहीं, हमें 2 स्पेशलिस्ट से एक टॉपिक पे एक्सपोजर मिल रहा है, जिस वजह से वो टॉपिक हर एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इतना कुछ है स्पीकर्स के पास बताने के लिए कि they are curious, I mean to add on, वो जो add-ons हो रहे हैं ना, of course ये information भी as a viewer, as a student, as an audience हमें काफी ज्यादा enlighten करवा रही है about the knowledge of the topics. So I suppose
पूछने के लिए, डिस्कशन करने के लिए तो काफी कुछ है, बट हमने मेजर एस्पेक्ट्स काफी कवर किए। सीए को देख लो, सीपीए देख लो, एसीसीए, सीएफए, एफआरएम, and I think Keval ji has got something to speak. Yes, Keval ji. Yes. हाँ, मेरे पास व्यूअर्स के यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में एक बार चीजें बता देता हूँ कि जितनी भी चीजें मैंने और प्रतीक भाई ने अभी डिस्कशन की अबाउट द स्पीशीज। Just a minute, Keval ji. Viewers, ये सारी चीजें ध्यान से सुनना, because before we proceed ahead with the rapid fire round, we have a poll for you related to whatever discussion we have. So you have to choose that poll. So before we come up to it, yes, Keval ji, please proceed ahead. जितनी भी चीजें मैंने और प्रतीक भाई ने भी डिस्कशन की अबाउट द सीएफए, एफआरएम, एसीसीए, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इन सबका बेस है एक्चुअल में सीए है। इन सबका बेस सीए के अंदर है। कल भी मैंने बात हुई थी मैडम हर्षा मैडम के साथ, तो मैंने उनको बोला था कि पाँव आप अलग कर दो और भाजी अलग कर दो तो खाने की मजा नहीं आती है। ये पाँव भाजी जो साथ में होते हैं ना, उसकी मजा आती है। ये जितनी भी डिग्री आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, जितने भी अपने साथ व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने साथ जुड़े होंगे डेफिनेटली, उन सबको मैं पहले क्लियर कर दूं कि 12th के बाद है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि भाई इतना सारे कोर्सेज है, ये करना है, वो करना है, तो आपकी आधी जिंदगी तो ना कंफ्यूजन में चली जाती है और बाकी आधी जिंदगी आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर चली जाती है। तो ये समय चला जाएगा ना, फिर पता चलेगा कि भाई ये सब मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर रोड मैप टू ऑल द पीपल हु हैज जॉइन्ड विद अस। 12th के बाद शांति से सीए खत्म करो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, लेट मी टेल यू, 3 साल आपको इतना ये लोग निचोड़ देंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला आईसीए इतना निचोड़ देंगे ना कि बंदा मेंटली बराबर फिट हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना जाड़ी चामड़ी के लोग बन जाते हैं। पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, बस अपने वैसे बन जाते हैं। 3 साल के आर्टिकलशिप के अंदर आपको इतना ग्राइंड किया जाता है ना कि 3 साल के बाद बंदे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बंदा दिल का इतना कठिन हो जाता है। बट दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो पहले सीए खत्म करो शांति से, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं एक्चुअली यहाँ पे आ रहा हूँ कि ये कोर्सेज कब करने चाहिए। कोर्सेज की तो हमने बात कर ली, लेकिन कब करने चाहिए। सो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ कि 12th के बाद शांति से पहले सीए खत्म कर लो। सीए खत्म करने के बाद है ना, तुरंत ये सब कोर्सेज के पीछे मत दौड़ते जाओ कि मुझे सीएफए करना है, मुझे एफआरएम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नो, सीए करने के बाद शांति से पहले, ठीक है, एक अच्छी जॉब जो आपको लगती है, आपके सूटेबल है, आपको पसंद आए, उस फील्ड में पहले जाओ। 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस लो। फिर आपको लगे कि नाउ आई वांट टू बिल्ड माय करियर इनटू दिस फील्ड एंड आई एम लविंग दिस फील्ड, दिस इज बिकमिंग माय पैशन। ठीक है, फिर आप उस फील्ड के अंदर अब मुझे और क्या क्या आगे ऐसी चीज है जिसके अंदर पढ़ के मैं और एक्सपर्ट हो सकता हूँ, फिर आप कोर्स सिलेक्ट करो। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, सीए करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स नौकरी में जाते हैं, कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं। चलो 2 साल आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन की, आफ्टर 2 years यू फील कि यार नहीं, कॉर्पोरेट मेरे बस की बात नहीं है। आई एम अ सुरती पीपल, वी आर गुजराती पीपल, एंड धंधा तो अपने डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, वो डीएनए के अंदर जो चीजें होती है ना, निकल निकल के बाहर आती है। वो बंदा जॉब भी करता है तो भी वहां पे बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो 2 साल अगर आप जॉब करते हो, 2 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि नाउ आई वांट टू मूव बैक टू द बिजनेस और आई वांट टू मूव टू द सीए प्रैक्टिस, तो अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो तो ना आपको सीएफए काम का है, ना आपको एफआरएम काम का है, ना आपको एसीसी इतना काम आने वाला है, बिकॉज प्रैक्टिस इज होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिस में आपको क्लाइंट्स को यहाँ पे मैनेज करना है। सूरत की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे ज्यादातर काम अपना टैक्सेशन रिलेटेड होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड होता है। तो फिर अगर आपने सीएफए किया है, आप टेक्सटाइल की मार्केट में जाके बोलोगे ना यार आई एम सीएफए, तो सामने वाला बोलेगा उसका मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरा ऑडिट करवाने से मतलब है। ठीक है, आई एम टॉकिंग इन अ वेरी ब्लंट वे, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई डोंट केयर हु इज सिटिंग, सो आई एम टॉकिंग इन अ वेरी क्लियर कट वे। सो अगर आप प्रैक्टिस करते हो और अगर आप टेक्सटाइल मार्केट में जाते हो, आपके क्लाइंट के सामने बैठे हो और अगर आप ये बोलते हो कि आई हैव डन सीएफए, एफआरएम, एमबीए, फाइनेंस, क्लाइंट एक ही चीज बोलेगा, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तू मेरा ऑडिट कर, बात खत्म कर। सो इफ यू आर आफ्टर 2 years कमिंग बैक टू द प्रैक्टिस, आफ्टर कमिंग 2 years आफ्टर कमिंग टू द बिजनेस, तो मे बी इतना काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि सीए खत्म करने के बाद 1 से 1.5 साल है ना, आप जरा टाइम दो अपने आप को समझने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार सुनोगे ना, तो पैशन को फॉलो करो। अरे बॉस, पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को पूछे उसको पता है उसका पैशन क्या है। पैशन को फॉलो करने के लिए भी उसको पहला पैशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक, व्हाट इज द पैशन, तो उसके लिए आपको 1.5-2 साल का टाइम देना पड़ेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल आपने फाइनेंस की जॉब की, एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपने जॉब किया, ऐसा फाइनेंस के अंदर आपने कुछ काम किया और आपको पसंद नहीं है ये फील्ड, यू मे चेंज ओवर द फील्ड। ठीक है, तो ये 3 साल है ना, सीए खत्म करने के बाद 3-4 साल तक ये हसल रहता है, ये फील्ड से ये फील्ड, ये फील्ड से ये फील्ड, आप फील्ड चेंज करोगे। एंड देन वंस यू आर क्लियर विथ योर माइंड कि यस नाउ दिस इज द फील्ड जिसके अंदर मुझे मेरी लाइफ आगे लंबा करियर बनाना है, देन यू शुड गो विद दिस कोर्स।
सो आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी तुरंत फटाफट इसके पीछे मत दौड़ो कि हमको ये कर देना है, हमको वो कर देना है। एंड जो बच्चे 12th के बाद भी यहाँ पे पूछ रहे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर 12th के बाद FRM करे तो, 12th के बाद ये करे तो, सर हाथ जोड़ता हूँ, शांति से पहले CA खत्म करो। CA इज अ प्लेटफॉर्म, CA इज अ बेस। इंडिया के अंदर CA ही चलता है, इंडिया के अंदर ये सब कुछ है ना एडिशनल है, इतना आप समझ लेना, ठीक है। यस, ओवर टू यू हर्षा। Yes, so very clearly these speakers have made us understand कि कब करना है। Also I would like to add ये सारे courses as in you can appear for the exams after your graduation. So I suppose automatically तब तक आप CA कर सकते हो, जो 4 साल में CA complete होगा तब तक you will have the scope or the room to proceed ahead with all these courses. And yes, बोलते हैं ना कि ये सारी चीजों को कर लो और जॉब करने लग जाओ एंड अपनी अर्निंग से ये एड ऑन स्टार्स लगाएं, वो ACC हो या फिर CFA हो, so that you know you will also value that also। क्योंकि आप CA हैं तो आपको अलग से दिन रात इसको देने की जरूरत नहीं है। I mean, आप साथ साथ में, जैसे प्रतीक जी ने बताया, आप साथ साथ में उसको पढ़ सकते हैं 6 months जैसे, एंड इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। So try to carry on these courses as per the guidance of the speakers and see to it that you do it with your own earnings, both to value it, to carry on with your job, and also आपको इसमें dedicated 24/7 पढ़ने की जरूरत नहीं, because you are already a CA, तो automatically it will help you कि आप अपने जॉब के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ इसमें पाथवे ढूंढ सकते हैं। All right, so before we proceed ahead with the rapid fire round, ये सारी चीजें समझने के बाद बच्चों का क्या प्रेफरेंस है, स्टूडेंट्स का क्या प्रेफरेंस है, व्यूअर्स का क्या प्रेफरेंस है, कि ये सब चूज करने के बाद उनको क्या पसंद आया, CA के साथ व्हाट दे वुड लाइक टू। ऑफ कोर्स एज पर द स्पीकर्स, जॉब करते जाओ तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ आपका कोर है, ये मेरे को इंटरेस्ट कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग अप टू द लिसनिंग टू आवर स्पीकर्स, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप किसमें जाना चाहेंगे? I just launched the poll. You all have to select which combination you prefer after today's discussion. So let's see what the students have, what the viewers have to say about it. उन्हें क्या पसंद आ रहा है? So we'll wait for a minute more for all of them to attend. Meanwhile, if I yes, जैसा कि सर ने कहा ना, केवल भाई ने, कि आप जानो पैशन क्या है, और एक क्वेश्चन भी था कि हाउ पेरेंट कैन हेल्प। कोई टेस्ट है, कोई टेक्निक है कि पैशन या टेस्ट आइडेंटिफाई करें, क्या इंटरेस्ट है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा 2 साल का है, मेरी बेटी 6 साल की है, तो इनको किस फील्ड में जाना है। तो मैं तो सिंपल एक ही काम करता हूँ, एक्सपोज। वो डांस क्लास भी ज्वाइन करेगी 6 महीना, अच्छा लग रहा है कंटिन्यू करनी तो नहीं करना, फिर से पूछना, तो म्यूजिक भी कर, एक्सपोजर। तो CA जो कोर्स है ना, अगर हम थोड़ा कट डाउन करें, स्टूडेंट के एंगल से देखें ना, केवल भाई आपकी बात एकदम सही है, बट स्टूडेंट कई बार क्या देते हैं ना, CA नहीं करना है, कुछ और बताओ, चौकड़ी मार के आता है। जैसे कि एक गर्ल जिसकी वार्डरोब में बहुत सारी पिंक ड्रेसेस है, तो बोले पिंक मत दिखाना, कुछ भी दिखा। तो इट इज समथिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि CA मत दिखाओ, फिर आपको क्या दिखाना है वो बताओ। तो आई थिंक बच्चों को ये समझना होगा कि इतनी सारी फील्ड को अच्छे से क्या होता है ना, उसका एक्सपोजर आपको इंटर पे मिलेगा, फाउंडेशन में भी नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आप, जैसा कि अर्षा मैम ने भी कहा, बीकॉम करते करते आपका इंटर तो आराम से खत्म होता है, आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी करा देती है इंस्टीट्यूट, अच्छी वाली 2 लेवल की ट्रेनिंग हो जाएगी, और आपका इंटर खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट की बेस आपको आइडिया आ जाएगी कि व्हाट टू बी डू। हालांकि कुछ बेस नहीं आएगा फाइनल के बिना, बट कुछ बेस आ जाएगा। और आप अगर 6 महीने की आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर लोगे, बाय द टाइम यू कंप्लीट योर बीकॉम, देन इट वुड बी राइट टाइम टू चूज बिटवीन MBA के नया CFA और ACC, आप किधर जाना चाहते हो। यू विल बी नॉलेजेबल इनफ योरसेल्फ कि क्या सही इंफॉर्मेशन है, क्या गलत है कर। सो एक्सपोज योरसेल्फ एंड देन डिसाइड। तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही चीज करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिल्कुल, आप काटो मत उसको, करो, इंटर तक करो, फिर आप डिसाइड करो। प्लान B भी हो गया लाइफ में, जो चाहते नहीं कर पाए तो एटलीस्ट यू कैन कंप्लीट CA, और कुछ तो हम कर रहे थे लाइफ के साथ मीनिंगफुल, सो दैट विल हेल्प। बिल्कुल। सो मेरी प्रतीक जी से जब बात हो रही थी, उन्होंने बस यही बताया था कि बहुत लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट वन, बट मैं बोलूंगा
ये अपॉर्चुनिटी एक नहीं 100 बार आती है, बस अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाते जाओ, अपने आप को केपेबल बनाते जाओ, अपॉर्चुनिटी झक मार के आपके पास आएगी। तो बस उन्होंने इसी चीज को एक बहुत बेहतरीन तरीके से पुट किया कि करते जाओ, गो अहेड विद दिस, देखो कहाँ पहुंच रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट योर नेक्स्ट स्टेप एंड प्रोसीड अहेड। जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उसको मैं सिर्फ एक चीज कह देता हूँ, सिर्फ मुझे तो एड ऑन ही करना है। हाँ जी, एड ऑन्स हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, गो अहेड। आप हर जगह पे है ना कैरियर शब्दों को बहुत सुनोगे। जो 12th के अंदर जो बच्चा होता है ना, उसका तो दिमाग का दही हो जाता है, कैरियर कैरियर कैरियर। और आप 18 साल से लेकर 23-24 साल तक होता है ना, तो कैरियर कैरियर कैरियर, मतलब बंदा यही सुनता रहेगा। कैरियर शब्द के आगे है ना एक वर्ड लगा दो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वो चीज होती है, दैट इज प्लान्ड कैरियर। ये जितना डिस्कशन हो रहा है ना, दैट इज बेसिकली फॉर द प्लान्ड कैरियर। लेट मी टेल यू, 99.99% people fail, that is because of the lack of planning. They don't know basically what needs to do, where I wants to go, and that is why they are doing everything. बाजार में होशियार लोग बहुत सारे पढ़े, too intelligent people are there. मोटा भाई हमसे बहुत कम पढ़ाए लिखे होंगे, लेकिन उनकी चीजें होती है बहुत प्लान्ड चीजें होती है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, जियो किस तरीके से मार्केट में आया 2014 के अंदर और किस तरीके से मार्केट साफ किया, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। सो जो भी व्यूअर्स अपने कैरियर से एक शब्द आगे लगा दो, प्लान्ड कैरियर, बस लाइफ बहुत मजे की हो जाएगी। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जो लेना है लो, और 5 चीजें सुन के लो, सो देयर डिसीजन विल बी इन्फॉर्म्ड, रादर देन आप ऐसा नहीं बोलोगे अरे ये तो मेरे को पता नहीं था। So here it goes. So these are the results of the combinations of our viewers. सारी चीजें सुन के, of course they are going to have still more further discussion जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, but as of now this is what they have chosen. 15% goes with CA plus CPA, 18% CA plus FRM, 26% CA plus ACCA, basically आप UK जाने वाले हो फिर, and 41% CA plus CFA. So these are the views of our viewers. Okay, so let's proceed ahead. अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड, एंड ये एक क्वेश्चन दोनों के लिए होगा। सो प्रतीक जी आपके लिए जो क्वेश्चन होगा, केवल जी आपके लिए भी वही क्वेश्चन है। सो 1 by 1 you are supposed to answer. Try it to be as short and as spontaneous, and once we complete with our rapid fire round, we'll have a poll from the viewer side where they're going to put up their preference that उनको किसका सबसे ज्यादा spontaneous और सबसे ज्यादा interesting लगा. So just a spice to the entire conversation in the form of game, and also ये बहाने से हमें प्रतीक जी और केवल जी के बारे में और जानने मिलेगा. So let us proceed ahead. So first question, it is for both of you. पहले प्रतीक जी आंसर करेंगे and then केवल जी. So what's the best piece of advice you have ever received, प्रतीक जी? जैसा कि मैंने कहा था बालकिशन भैया, जिसके ऐसा बनना है उसके साथ रहो, उसके बारे में सुनो पढ़ो, करेक्ट, चूज वाइजली. करेक्ट. केवल जी? प्लानिंग, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. वेनसडे करके एक पिक्चर आया था, अगर आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसके अंदर नसरुद्दीन शाह ने पासवर्ड रखा था, एवरीथिंग इज प्लान्ड. करेक्ट. Okay, thank you so much. The second one is, if you could be from any other decade, मतलब कोई भी एक डिकेड ले लो, से 90s का, 80s का, 70s का, तो केवल जी आप बताइए कि आप कौन से डिकेड में जाना चाहेंगे और क्यों? मैं कौन से डिकेड में जाना चाहूंगा? आई वुड लाइक टू गो इनटू 90s. अच्छा, ऐसा क्यों? 90s के अंदर इसलिए जाना चाहूंगा बिकॉज ये इतने सारे कोर्सेज की तो हमने सबने बात की, बट आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन, मुझे है ना शांति चाहिए. आई वांट पीस. ये सीए, सीपीए, सीए, सीएफए, सीए, एफआरएम सब दुनिया के ना भागम भाग है, रश एंड रश है सब. इसके अंदर लाइफ कहीं पे नहीं है, इसमें मजा कहीं पे नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ. ठीक है, आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन जो लाइफ को एंजॉय करने वाला बंदा हूँ. समोसा लाओ तो मैं फुल प्लेट समोसा खा जाऊंगा विदाउट कंसीडरिंग माई कैलोरीज. सो 1990s के अंदर अगर अपने जाते तो ये लफड़ा ही नहीं था. हम बहुत मजे से मैदान में खेलते थे, पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे, वेकेशन के अंदर पत्ते खेलते थे, मार्बल्स खेलते थे, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम. सो अगर आप मुझे लेके जाओगे तो आई विल गो बैक टू 90s एंड वापस कभी आऊंगा ही नहीं. ओह, CFA लेवल 3rd का क्या होगा तो फिर? Alright, yes Pratik, what would you like to say to this? I always believe live in present, right? पुराने दिनों को याद करो, उनमें खो मत जाओ.
फ्यूचर की प्लानिंग करो लेकिन बहुत ज्यादा चिंता मत करो। दिस इज व्हाट माय फलसफा। मैं तो सच बताऊं, आज कोरोना के टाइम पे भी मेरे हर जूम मीटिंग का पासवर्ड होता है हैप्पी ऑलवेज। एंड आई ट्राई टू मेक श्योर एट अ पॉइंट दैट आई एम हैप्पी ऑलवेज एंड ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन माय ओन लिटिल वे वेयर आई कैन, वेयर आई गो। सो प्रेजेंट में रहना चाहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। आई एम गुड इवन इन दिस टाइम, बिकॉज कंप्लेन और एस्पिरेशंस दोनों चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आई एम वेरी मच पीस विद माई सेल्फ एंड वुड लाइक टू टेक लाइफ एज इट कम्स। No time machine required to Pratik ji. All right. So the third question is, given an option, Pratik ji, what would you opt for? Job at Microsoft? मतलब अगर आप शुरू कर रहे हो अपना career, what would you like to opt? Job at Microsoft or the current field you are into? Never a job. Okay, never a job. Never a job. You know, always into entrepreneurship or a field of your own where you can create jobs rather than looking for jobs. Perfect. Yes, Keval ji, what would you like to answer for this? Job at Microsoft or your current field of career? Entrepreneurship. The reason is very simple. At the age of 23, at the age of 24, you have the highest risk-taking capacity. You cannot take risk at the age of 45, 50. जितना कबाड़ा करना है, जितना रिस्क लेना है, जितनी ताकत है, जितनी डायरिंग है, सब दिखा दो 23, 24, 25 साल की उम्र में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दौड़ने की पूरी कैपेसिटी है। जिंदगी की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ना बीवी है, ना बच्चे है, गर्लफ्रेंड है, मजे करो, कोई इश्यू नहीं है। सो 23, 24, 25 इज द एज जब आपको जितना रिस्क लेना उतना आप ले सकते हो। All right, so very well said. That is risk-taking age, so why not entrepreneurship? So both our speakers are fond of entrepreneurship, and that is what they are running right now. Thank you so much. The next one is your best book, Keval ji, and one message from it. Best book, गीता। कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर, ऊपर वाला देगा। बस गिव योर 100% एफर्ट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग। अगर आज मैं यहाँ पे आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मैं दिल खोल के बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कोई फॉर्मेलिटीज के अंदर पढ़ा हूँ, ना मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। बस अपने अच्छे से दिल से बात करो, दैट्स इट। कर्म किए जाओ, फल की चिंता ऊपर वाला करता रहेगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट, यस प्रतीक जी। देखो, गीता बहुत अच्छी बुक है, हर सवाल का जवाब है। रामायण भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, मतलब क्या सीरीज बनाई है हमारे रामानंद जी ने, इट वन ऑफ द बेस्ट। बट मैं बात करूंगा एक पर्टिकुलर बुक की, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा एक बुक लिखी थी, द गोल, जो मैंने मेरे MBA प्रिपरेशन के करियर के टाइम पे पढ़ी थी, एंड इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव दैट आई हैड। उस बुक का सिंपल स्टोरी था कि आप अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हो, आप 15 लोग हो, लाइन में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड डिपेंड करेगी स्लोएस्ट पर्सन, जो स्लोएस्ट है, तो आपको साथ में पहुंचना है, वो पीछे रह गया, आगे आप कितना भी आगे भाग जाओ, आपको रुकना पड़ेगा फॉर देम टू गो। एंड वही मेरी लाइफ को मैंने फिलॉसफी बनाई है कि मेरी फैमिली, जो मेरी स्वास्तिक फैमिली, जो मेरा परिवार है, और जो मेरे बिजनेस की फैमिली, सबको साथ में लेके चलना। यू हैव टू एम्पावर पीपल इन ऑर्डर टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप आगे निकल रहे हो लेकिन पीछे वाला पीछे रह गया, तो फिर आप आगे रुक के भी रुकना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट बुक। दैट इज द रीजन व्हाई द गोल करके बुक है। मैनेजमेंट फिलोसॉफी है, CA फाइनल की एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन उसको पूरी बुक के फॉर्म में जब मैंने पढ़ा, आई वाज सो अमेज्ड। So the goal is something that I recall, Robert Kiyosaki. All right, the goal and keep empowering. Fine. The next question is, due to COVID-19, the exams have been postponed. So one-liner guidance to our CA students who are appearing for the exam. Yes, Pratik ji. Okay. It does not matter कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गया। I think हम हमेशा से लगता है कि एक दिन भी ज्यादा मिल जाता तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा। So we have been given 3 months or more than that period, क्योंकि क्लैरिटी 3 मंथ्स पहले ही मिली, बट 3 मंथ्स है तो इनफ टाइम टू प्रिपेयर वेल। प्लीज मेक श्योर दैट आपकी फायर पावर कम नहीं हो। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया रैंक कैंडिडेट थे वो थोड़े डाउन है, एंड जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जो टॉर्टॉइज वाली बात थी, टॉर्टॉइज है, तो अभी हमें पूरा चांस मिल गया है कि बाकी लोग फोकस नहीं है और वो टेंशन ले रहे हैं कि तब भी होगी कि नहीं होगी। स्टे फोकस, स्किल पे फोकस करो, वैल्यू एडिशन पे फोकस करो। एग्जाम जब भी होगी, यू आर गोइंग टू एक्सेल, एंड डिले नहीं होगा। आई थिंक ICI और बालकिशन जी सुन रहे हैं, फोन पे बात है, मैं उनको पर्सनली मैसेज कर दूंगा कि कुछ ऐसे प्रोविजंस ले आएंगे जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट, जैसे कि देव भाई ने भी पहले कहा था, बहुत अच्छी चीजें रीबाउंड हो रही है, सही हो रही है, तो वो डेफिनेटली कुछ लेके आएंगे जिससे कि इनका फाइनल डिले नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसको छोड़ के अल्टीमेटली जब CA बनने वाला तभी बनने वाला, तो अच्छे से पढ़ाई करें और बने रहें। ऑल राइट, यस केवल जी। ओके, आपने एक लाइन पूछी थी, तो मेरी लाइन आएगी, CA इज not a tough course, but it is a course for the tough people. So 3 months is a testing time.
ठीक है, लाइफ के अंदर तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी। कोरोना कौन सी बड़ी बात है, कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी। आज इतनी सारे हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। सो पीपल हु सी इट इज अ थ्रेट, आप नेगेटिवली देख सकते हो। आई सी कोरोना वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सो जो मैंने बोला, इट इज अ कोर्स फॉर द टफ पीपल एंड इट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू शो दैट व्हाट दे कैन डू इफ दे आर गिवन or if they are thrown in such kind of situation, they can come out with like anything. वो कहते हैं ना, कीचड़ के अंदर एक कमल खिलता है। Correct. It's like when the going gets tough, the tough gets going. Chalo, tough people, keep up your spirit. Now the next question, yes, Keval ji, 1 plus and 1 minus of virtual teaching learning process during COVID. 1 plus and 1 minus of the virtual coaching learning process going to during COVID. Okay, 1 plus thing is you can reach to anywhere, like people sitting, जो आपने स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, like in my CA final batch students are there from Assam to Kanyakumari, ठीक है, so that is one of the best thing which has happened to me. One of the minus point which I see is जब हम लोग क्लासरूम स्टडी करवाते थे तो वहाँ पे बहुत सारी हम लोग मैनेजमेंट की बातें करते थे। we used to give motivation lectures to so many students, daily motivation dose हमारा रहता था। वहाँ पे इंटरेक्शन जो रहता था बच्चों के साथ, वो जो एक एटमॉस्फेयर था, that is a negative point which I see. Yes, Pratik. One plus is that everybody can ask a doubt. Chat to private option select करके I've found that everybody is able to speak his mind. That is big plus. जो otherwise लोग एक दूसरे का शंका बहुत करते हैं कि मारे नहीं थे पूछवानो बता वो बता बेसे लचे सू जना all those things वो नहीं पूछते थे, तो वो पूछ रहे हैं। That is a big plus. And जो एक माइनस पॉइंट में देखता हूँ स्टूडेंट सेंट्रिक के, स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज को देख के हम कई बार अपने आप 2-3 चीजों को रिपीट करते, एम्फेसाइज करते थे, एग्जांपल्स ऐड करते या स्पीड को मैनिपुलेट कर पाते। Here we have to do this, it's very difficult. अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है, नहीं बोल पा रहे, तो मुश्किल होता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं गेज कर पाते हम स्टूडेंट्स। All right. Yes. The next one, journey to become CA for CA students. Any one change you would like to suggest for ICI to take? Pratik ji. Okay. Articleship should be made earlier, or rather it's very difficult, but जैसा कि फॉरेन कोर्सेज में हम देखते हैं, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसके अंदर जो चेक करने के मैकेनिज्म भी ला रहे हैं हमारे करंट प्रेसिडेंट, मुझे बहुत अच्छे लगे, बट इट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल सो दैट थोड़ा सा शायद 6 महीने या 1 साल और कर्टेल हो सके कोर्स। मतलब क्वालिटी या मेहनत पे कोई कमी नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कर्टेल कर सकते। Detailed thinking is required, but yes, that is one suggestion. One suggestion. All right. Yes, Keval ji. मेरा आंसर बहुत वियर्ड है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर से मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपलसरी हॉस्टल में बच्चों को भेजना होना चाहिए। कंपलसरी आफ्टर 18 स्टूडेंट्स शुड गो टू द हॉस्टल, दैट्स इट। I have done chartered accountancy staying into the hostel, and I can totally tell you what is the difference between studying CA in a hostel and studying CA at a home. मैं बोलूँ 19-20 का नहीं, 100-200 का फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। हॉस्टल के अंदर बच्चों को भेजो, बच्चे को खाने का भी सब हैबिट पड़ जाएगी। जो बच्चे घर में नखरे कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, मम्मी सब बना के देती है ना, जाओ हॉस्टल के अंदर सब कुछ खाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। यस गो अहेड। सेकंड थिंग, सराउंडिंग्स मैटर। इफेक्ट आती है, सिनर्जी इफेक्ट आती है। वहां पे जो 25 लोग हम लोग जब बैठ के पढ़ाई करते थे ना, पूरी नाइट हम लोग खींचते थे, सिनर्जी इफेक्ट। थर्ड थिंग, हैबिट्स डेवलप होती है। 4 साल जो मेरे सीए के थे, आई वाज इनटू हॉस्टल, 4 साल आई वाज प्लेइंग टेबल टेनिस। वहां पे मैंने टेबल टेनिस खेलना सीखा, और आज मेरी लाइफ के अंदर वो एक पार्ट हो गया है टेबल टेनिस खेलना। गो टू हॉस्टल, यू विल लर्न मैनेजमेंट, यू विल लर्न सीए, यू विल लर्न मैन मैनेजमेंट। ये पढ़ाई तो दूर की बात है, अल्टीमेटली तो लोगों के साथ रहना आपको सीखना पड़ेगा। मैन मैनेजमेंट, मैनर्स, एटीट्यूड, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स, लाइफ क्या है ना, वो कोर एक्सपीरियंस आपको करवाएगा हॉस्टल। थ्रो योर चाइल्ड टू द हॉस्टल एंड देन सी आफ्टर 4 years। करेक्ट। सो मैं ये बता रही थी कि केवल जी हर तरीके से, चाहे वो खाना हो या टेबल टेनिस हो या सीए हो, टफ तो आपको बना के छोड़ेंगे। प्रोसीडिंग अहेड, who do you admire the most? केवल जी? मतलब in terms of personality? Personality, yeah. Whom do I admire the most? I admire the most is Elon Musk. Okay. I love his attitude. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। बंदा रशिया के पास गया था कि मुझे
कुछ उसको मून पे जाना था, तो उसके लिए वो एयरक्राफ्ट लेने के लिए रशिया के पास गया था, तो रशिया ने उसको बोला कि यार पागल है क्या, एयरक्राफ्ट तो नहीं खरीद सकता है, तो वापस आ गया वो यूएसए के अंदर, और बंदे ने खुद की अपनी कंपनी खड़ी कर दी, दैट इज स्पेसएक्स। आज स्पेसएक्स ने अभी लास्ट मंथ नासा के साथ मिलके लोगों को ऊपर भेजा, मून पे लोगों को भेजा, स्पेसएक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है। तो रशिया ने अगर उसको ना बोला तो उसने खुद की कंपनी खड़ी कर दी। दिस इज व्हाट एटीट्यूड यू रिक्वायर्ड इन द लाइफ। कोई आपको ना बोले, अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दो। ऑलराइट, यस प्रतीक जी, यू आर म्यूटेड, आप म्यूटेड हैं। प्रतीक जी आप म्यूट हो चुके हैं, प्लीज आई अनम्यूट यू। यस, प्लीज गो अहेड विद योर आंसर। हाँ केवल सर, अपने मिलके ना बात करते हैं और एक हॉस्टल खोलते हैं। Okay, and whom they admire was very difficult question, right? But I कहूँगा कि मेरे partner ऋषभ, a lot of things I learned, I think very difficult for students to relate here. मैं I would like to keep it here. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पोल को आप पोलिंग कराने का जरूरत नहीं है, मैं तो खुद बोलूँगा I like केवल भाई सर। हाँ सर। All right, the next one. As of now, I think Pratik ji and Keval ji दोनों अपनी 30s की एज में जा रहे हैं, तो which one peculiar feature distinguishes you from your 20s as your age till your 30s as age? क्या आप में फर्क आ गया? One feature, yes Pratik जी। Okay. In 20s, you know, you used to do things more or less impulsively and then see the consequences. In 30s, you try to gauge upon the consequences and choose your words wisely. Oh. I think being a parent to 2 kids have changed my perspective in this manner. Wow. So consequences and because अब अपनी लाइफ की वैल्यू लगती है उन लोगों के लिए ज्यादा है। हाँ। Because I'm a man, कोरोना का भी कोई टेंशन नहीं है, घूमो फिरो खाओ पियो एंजॉय करो, जैसा कि सर ने कहा अपनी सिमिलैरिटी। Correct. Yes, Keval ji, what would you like to answer for this? Men management. Men management. Yes. 20s के अंदर लोग मुझे आराम से मैनिपुलेट कर जाते थे, मैं भी मैनिपुलेट होता था क्योंकि अपनों को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लोगों का। लेकिन 6 साल के अंदर बहुत सारी जगह पे काम किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ICI के अंदर जो 6 साल मैंने काम किया इनटू द वेरियस कमिटीज, वहाँ पे जो लोगों के पास से मुझे सीखने को मिला, जय छायरा सर से, बालकृष्ण सर यहाँ पे बैठे, इनकी एनर्जी, ये इनके मॉर्निंग के जो पोस्ट आते हैं ना साइकिलिंग वाले, वो मुझे कहीं यार ये बंदा किलोमीटर 7 बजे पोस्ट डाला, 7:30 बजे मैं उठा तो पोस्ट देखा तो आधे घंटे पहले का पोस्ट था, मतलब उन्होंने 7 बजे पोस्ट डाला है, मतलब ये कितने बजे करके आ गए और मैं यहाँ पे 7:30 को अभी उठ रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोगों के साथ जब मिलकर काम किया, बालकृष्ण सर है, जय छायरा सर है एंड वेरियस अदर चेयरमैन, सबके साथ काम किया, उसके साथ साथ रहते रहते बहुत सारी चीजों को सीखने को मिली कि मैनी टाइम्स जो पहले ऐसा हुआ करता था कि आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी क्विकली, ठीक है, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब मैं बहुत शांति से चीजों को सोचता हूँ, समझता हूँ एंड फिर शांति से मेरा रिएक्शन देता हूँ। वो कहता है ना सही टाइम पे वार करने का। ऑलराइट, तो सब लोग बच के रहना और कुछ गलत मत करना, नहीं तो कुछ भी आ सकता है। ऑलराइट, ओके, सो योर बिगेस्ट एडिक्शन, केवल जी। माय बिगेस्ट एडिक्शन, या माय बिगेस्ट एडिक्शन, अगर मेरे पास ऐसा मैं कहीं से कोई एडिक्टेड तो नहीं हूँ किसी भी चीज से, सो आई थिंक आई कैन नॉट आंसर दिस, क्योंकि मे बी सोशल मीडिया आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा तो बहुत कम है। फिर भी तो ऐसा मेरे को कोई एडिक्शन नहीं आया है। नेवर टेस्टेड टी, मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, मुझे ऐसा किसी भी चीज का कोई एडिक्शन नहीं है। सर का एडिक्शन मैं बताता हूँ, सर का एडिक्शन है टीचिंग। He cannot live without teaching. Correct. So addicted to is not necessarily wrong things. Exactly. So I'm addicted to TV series, especially stand-up comedies. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी इतना क्यों देखता हूँ, कई बार मैं ऐसा लगता है छोटा बच्चा हूँ क्या यार, टीनेज में हूँ, but I think many times it helps us to keep young and stay relatable and connected. I think that is one thing. एक बार घंटा 2 घंटा भी लग जाता तो पता ही चलता। ये तो बहुत अच्छी बात है। I mean, ऐसी चीजें चाहिए जहाँ पे आप बचपन वाली हंसी लेकर आ जाए and you feel so good about it. तो घंटा 2 घंटा बिल्कुल आराम से निकलेगा। The last question is one message for our CA students. Yes, Pratik ji. One message for CA students. Yes. Okay. One message for CA students नहीं, मेरा ये मैसेज सबको ही होता है and I would like to repeat it because I want it to be मतलब reminded, हम सब जानते हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया बहुत अच्छी जगह, दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी हैव बीन सेंट हियर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, बस इसको याद रखें। वाओ, थैंक यू सो मच। यस केवल जी। शॉर्ट एंड सिंपल बोल देता हूँ, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, टैलेंट कैन नॉट बीट द हार्ड वर्क। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही चीजें हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बीइंग टीचर्स हमने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग ने अपने फ्रेंड्स को देखा है ड्यूरिंग आवर स्टूडेंटशिप कि हार्ड वर्क जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चला गया है। सो यस, आई सपोज ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू हैव परफेक्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन योर ओन वेरी natural best ways. So before we go ahead and conclude the session, let us just take the poll related to the, yes, here it goes. I suppose ये दोनों क्वेश्चन साथ में आ गए हैं। नेक्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे दो क्वेश्चन साथ में आ गए हैं, सो यू नो प्रिफर द नेक्स्ट वन जाकर अकॉर्डिंग टू यू, who would you vote for the spontaneous and interesting? I think we have to answer both for the poll to be concluded. Okay, okay, all right. So as per the guidance of Pratik ji, let us answer both. Let's see how it goes. So वो जो वोटिंग की लाइन है ना, वो कम ज्यादा होती जा रही है। So as soon as it comes, definitely, I mean, just this is a very good thing. I have never experienced this kind of session and this kind of polling. So Harsha, a great initiative, and Balkishan bhai, you are the creator of this whole thing. Yes, true. Balkishan ji has actually come up with the idea and with the constant support. वो जो आप बात कर रहे थे ना सुबह 4 बजे की, मुझे उनसे कुछ पूछना होता है ना तो 10 बजे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कन्वर्स विद हिम, तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि आंसर अभी मिल जाए, मैं मान के रखती हूँ आंसर मेरे को सुबह 5 बजे मेरे मैसेज पे आया हुआ होगा। और सच में जब मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे मेरे को एक मैसेज आया होता है रिलेटेड टू द कन्वर्सेशन वी हैड। ऑलराइट, सो आई सपोज आई एंड द पोल and I'll put up the answer. ये मैजिक है, ये मैजिक है, देखोगे रिजल्ट? So it's 50-50%. Wow, I mean what a balance. नहीं सर, मेरे को वोट करने नहीं दिया, ये डेफिनेटली केवल सर ही जीतेंगे। मेरा नहीं सर, आपके पास ही बहुत सीखने को मिला है आज तो, मजा आ गई मतलब बात करके। We are interacting for the very first time, so ये अच्छा मौका भी मिला बात करने का। Yes, it was a wonderful session. In fact, सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बहुत मिली, क्योंकि आप दोनों जिस तरीके से एड ऑन्स करके चीजों को कंप्लीट कर रहे थे ना, दैट वाज truly a perfect picture to describe about either CA, ACCA, CPA और ये सारे add-ons वैल्यू ऐड करते हैं, हायरिंग एबिलिटी क्रिएट करते हैं, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको एस्केलेट करती है फर्दर। एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पैकेज की बात करें तो जैसे दोनों स्पीकर्स ने बताया, करते जाओ, फल की इच्छा मत कर, सीधा ऊपर देखना पड़ेगा। एंड वी हैव गॉट सच गुड पैकेज एंड yes, as already mentioned by everyone, adopt these courses through your values, through your earnings, because as in after graduation you're going to do this, so why not to value this through your own earnings, right? So thank you Keval ji, thank you Pratik ji, it was a wonderful session. Before we proceed ahead, yes Balkishan ji, please come forward. मेरे को बहुत सारे messages आए थे chat box में कि बालकिशन जी कब बोलेंगे, तो हाँ जी ऑडियंस प्लीज सुनिए बालकिशन जी को। यस या थैंक यू वेरी मच हर्षा, एंड बहुत ही अच्छा सेशन रहा एंड आई एम लिसनिंग टू बोथ द स्पीकर्स केवल एंड प्रतीक, और बहुत अच्छे से और बहुत सिंप्लिसिटी से इन्होंने सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से किया। और जो शुरुआत की कि डिग्री से ज़्यादा जो है स्किल की ज़रूरत है, और इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन करना चाहूँगा। मेरे ऑफिस में एक आर्टिकल था आशीष गोयल, तो ही इज़ वेरी सिंसियर, बहुत अच्छे से उसने जो है आर्टिकलशिप की अपनी बहुत ऑडिट की है। और सीए नो डाउट वो थोड़ा लेट बना और एक ही डिग्री उसने ली,
तो कहने का मतलब है कि उसने स्किल पे फोकस किया और आज वो सिंगापुर है एंड हिज पैकेज इज मोर देन 50 lakhs और उसके साथ जो सीए बने थे वो आज शायद 20-25 lakhs पे होंगे। तो उसने स्किल पे फोकस किया, प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे किया और आज मतलब ही इज डूइंग वंडर्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द व्यूअर्स की जो स्किल है वो बहुत जरूरी है। और जो इतने कोर्सेज की बात की, एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी बात। पिछले 2-3 दिनों में मेरी यूके भी बात हुई है लंदन सुमित से, और यूएस से भी बात हुई है, विपिन है मेरे फ्रेंड, और इसके अलावा सिंगापुर आशीष से बात हुई है, पंकज से दुबई बात हुई है, और एम्स्टर्डम भी अपूर्वा है उससे भी बात हुई है। एंड दे ऑल 5 आर रेडी टू शेयर देयर व्यूज, जो अच्छी वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगस्त में डेफिनेटली हम सीरीज 1 to 3 लेके आएंगे, जो बाहर सेटल है एज ए प्रैक्टिशनर, तो उनके भी व्यू लेंगे और ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे मेंबर्स के लिए, इसका जो रिलेटिव्स वो डेफिनेटली उनसे हम शेयर करेंगे। और प्रतीक ने हॉस्टल की बात की, तो प्रतीक हॉस्टल आप प्लान कीजिए, डेफिनेटली वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, हमने पीछे लैंड भी देखी थी और सब कुछ है, आप जस्ट प्लान कीजिए केवल के साथ, डेफिनेटली हम हॉस्टल बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। और नो डाउट जो ये टाइम है, बहुत टाइम मिल रहा है सभी को, कुछ ना कुछ स्किल बढ़ाइए। मैंने जो किया सबसे अच्छा ये किया, पहले मैं 5-5:30 बजे उठता था, अभी मैंने 4-4:30 बजे उठना स्टार्ट किया। एंड आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ, रनिंग, योगा, मेडिटेशन। और जो उस टाइम में जो एनर्जी आप गेन करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है अगले 24 आवर्स वो काम आपके ऑटोमेटिकली होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे। सो मैंने ये बहुत अच्छा स्टार्ट किया है और उसका फायदा भी मिलता है। और 15-20 मिनट्स मैं अपना काम भी कर लेता हूँ ऑन मेल एंड मैसेजेस, जो भी रात को 10 बजे के बाद मैसेज आए मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बहुत अच्छा टाइम है ये, हम पॉजिटिविटी पे फोकस करें और कुछ ना कुछ गेन करें। सो थैंक यू वेरी मच केवल, प्रतीक एंड हर्षा। हर्षा ने बहुत मेहनत की इस सेशन के लिए, सारे क्वेश्चंस रेडी करने, रैपिड फायर राउंड रेडी करना, पोलिंग रेडी करना, एंड अमेजिंग सेशन, मजा आया, टाइम का पता नहीं चला। वी आर रनिंग लेट, आई थिंक 40 मिनट्स लेट, लेकिन इतना मजा आ रहा था। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यस, हैंड ओवर टू हर्षा। Yes, thank you so much, Balkishan ji. Keval ji has got something to speak. Yes, Keval. No. अच्छा, I thought you just raised hand. So I suppose सभी ने बहुत अच्छे से अपना contribution दिया, and of course वो synergy effect से ये session बहुत ज़्यादा enlighten हो चुका है, जिससे बहुत कुछ सीखने मिला है। और मैंने अपने आप को एक बात बताऊं तो अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि बस हर्षा अभी और नहीं, just to conclude the session। तो सीए बच्चों बन जाओ, बताया ना सेल जी ने कि सीए में आपको निचोड़ देते हैं ऐसे 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 ऐसे, फिर आपका सीएफए, आपका एफआरएन सब कुछ इतना पपलू लगेगा। जेन्युइनली तो पढ़ना है, बट आप लोग इतने टफ हो चुके होते हो कि आप आराम से सारी चीजें कर सकते हो। एंड माय पेरेंट्स आर हियर। मैं बताना चाहूंगी, जब मेरे को सीए करना था तो मेरे को तब तो एरा ही नहीं था, तब कोई करता ही नहीं था, तो घर पे ऐसा होता था फिर सीए क्यों करना है एंड ऑल दैट। और अगर तब हॉस्टल कंपलसरी होता ना तो भाई मैं कर ही नहीं पाती। बट आई एम श्योर ये अवेयरनेस सीए की अब बढ़ चुकी है, एंड ऑटोमेटिकली मेरे पेरेंट्स जैसे कई पेरेंट्स वुड बी रेडी। इनफैक्ट मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सीए करेंगे, चल हॉस्टल जाएंगे एंड मजे करेंगे। So yes, all your suggestions were really great and it helped our students. Balkishan ji, thank you so much. Thank you so much. It was a wonderful initiative and वो आपकी तरफ से जो constant push आता है ना, चलो हर्षल अब क्या करना है, so it has that creative mind to work upon. So thank you केवल जी, thank you प्रतीक जी। सच में आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। जिस सादगी से आपने अपनी चीजें बताई उसमें सादगी थी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन था। सो थैंक यू सो मच केवल जी, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। इट्स आवर प्राइड, आवर स्टूडेंट्स प्राइड फॉर यू टू हैव हियर। थैंक यू। All right, so we can conclude the session. All right, audience. Okay, yeah. Thank you so much. Yes, the chat messages says that it was quite informative. Thank you, audience. You actually, आपका वो जो constant interaction था, that actually helped us to bring the conversation more live. क्योंकि आप लोग ने जो questions पूछे हैं, आप ही के क्वेश्चंस हम उन तक पहुंचा रहे थे
एंड आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पोल, और वो जो मैजिक था आपका रैपिड फायर राउंड में, व्हाट अ मैजिक, 50-50, इट वाज अ परफेक्ट balancing situation. So yes, both the speakers have actually added the glance of knowledge, insights of knowledge for us to proceed ahead with the informative information, so that हम जो ले सोच समझ के ले, information के साथ ले, और अपने लाइफ को हर मोड पे अच्छी तरीके से स्टेप फर्दर करते रहे. So right, thank you so much audience. So Balkishan ji, let us put the meeting to end. Okay, bye bye. Yeah.